بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ایوری ون۔ کیا حال ہے سب لوگوں کا؟ خوش آمدید۔ آج آپ لوگوں کے لیے اسپیشل ایک اور ریویژن کا سیشن رکھا گیا۔ ویسے تو لاسٹ ٹائم ہم نے کور کر لیا تھا سب کچھ، لیکن آج آپ لوگ چاہ رہے تھے کچھ کوشچنس کی پریکٹس کروائی جائے۔ تو اس سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گی کہ اگر کوئی اسپیسیفک ڈسکس کرنا ہو، کسی نے اپنا کوئی ویک ایریا ہے یا کوئی پرابلم ہو رہی ہے کسی ایک لیسن میں یا کسی ایک کانسیپٹ میں، کوئی ایسی چیز اگر کوئی پوچھنا چاہے تو وہ بھی پوچھ لیں، یا پھر ساتھ ساتھ سنا ہو۔ السلام علیکم استاد۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں سسٹر؟ الحمدللہ استاد، میں مذکر سے مؤنث بنانے میں بہت کنفیوز ہوتی ہوں، ایک بار وہ کلیئر کر دیں۔ اسم کے حوالے سے یا فعل کے حوالے سے، کس طرح سے؟ مطلب وہ شروع سے ہی پرابلم ہے، کافی پریکٹس بھی کی آپ نے، وہ جو بھیجی تھی ریویژن ایکسرسائز وہ بھی میں نے کی ہے، لیکن پھر بھی کنفیوز ہو جاتی ہوں۔ جو ہوتا ہے نا تن اور مطلب وہ گولتا پہ جی گولتا اور ہے نا پراپرتا ہوتی نا، تو اس میں کنفیوز ہو جاتی ہے، کون سی واحد ہے جمع ہے پتہ نہیں چلتا، بہت کنفیوز ہو جاتی ہوں۔ نہیں دیکھیں، اگر اردو کے الفاظ کو تھوڑا سا ذہن میں رکھا کرے نا، مسلمہ ہم بولتے ہیں نا، یا مومنہ تو بولتے ہیں، مومنہ تو نام بھی ہوتا ہے نا، صالحہ بھی نام ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صالحہ میں مومنہ میں بولتا ہے نا، لیکن جب بھی ہم ان کی جمع بناتے ہیں تو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مومنات ہیں، اردو میں بھی یہ استعمال کر لیتے ہیں نا، مسلمات ہیں، مومنات ہیں، یا پھر صالحات ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر بولتا ہے تو وہ واحد ہے اور مؤنث ہے، اور اگر اس کے آگے الف با لگی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مؤنث کی جمع ہے۔ تو یہ مطلب اردو کا کوئی ریفرنس اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ کو نہیں بھولے گا۔ مائکس اپنے ذرا میوٹ رکھیے سب لوگ، تاکہ ڈسٹریکشن نہ ہو۔ تو مؤنث کے بارے میں ایک تو یہ اسم کی مؤنث کے بارے میں ہم نے بات کی نا، اس کے علاوہ حروف کے ساتھ جو ہم ضمائر کو کمبائن کرتے ہیں، اس میں بھی ہم نے سیکھا تھا کہ بیسک ورڈ ہم نے ہوا سیکھا تھا نا، تو ہوا کے اگینسٹ ہم نے کہا تھا ہیا، تو ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک مذکر، ہیا کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک مؤنث۔ اب ہوا اور ہیا دو ورڈز ہی آپ نے یاد کرنے سے۔ پھر اگر ہم نے کہنا ہو کہ اس ایک مذکر کا، یعنی ہم نے کہنا ہے کتابو ہو اس کی کتاب، یا قلم ہو اس کا قلم۔ یہ کی یا کا جو ہے نا، یہ تو اس چیز کی وجہ سے لگے گا جس کی ہم بات کر رہے ہیں نا۔ بیسیکلی تو ہم ایک مذکر کو ذہن میں رکھ کے بات کر رہے ہیں نا، ہم کہہ رہے ہیں بیتو ہو اس کا گھر، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم نے کہنا ہے اس مؤنث کا گھر تو ہم کہیں گے بیتوہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو کمبائنڈ والا ہو ہے اس کی کمبائنڈ والا ہا الف ہا وہ اس کے ساتھ کمبائن ہو گیا، لیکن جو انڈیپینڈنٹ والا ہوا تھا اس کے اگینسٹ ہیا بن گیا۔ تو یہ جو بیسک ٹیبل ہے نا آپ کا، ہوا ہم انت انا اور انتم اور نحنو، اور اس کے ساتھ اینڈ میں ہم نے کیا تھا ہیا، ہوا سے ہیا، اس کو آپ نے یاد رکھنا۔ صرف ایک ہی مؤنث کا ورڈ ہم نے ہر ٹیبل میں سیکھے۔ اس کے بعد جب ہم نے کتابو ہو یا بیتو ہو یا ربو ہو یا دینو ہو، کچھ بھی ہم نے وہ والا ٹیبل کیا تھا، تو اس میں 6 تو ہم نے اس طرح سے کیے تھے نا، جس طرح ربو ہو ربو ہم، ربو کا ربی، ربکم ربنا، پھر ہم نے کہا تھا ربو ہا، بس اس ایک ہا کو ہم نے یاد رکھنا۔ اسی طرح سے جتنے بھی 7 حروف کے ٹیبلز تھے، سب ٹیبلز میں جیسے لہو تھا، منہو تھا، انہو تھا، الیہ تھا، بہی تھا، منہو تھا، یہ جتنے بھی اپنے حروف کے ٹیبل سیکھے تھے 7 تھے۔ ان میں بھی 6 الفاظ مذکر کے ہوتے ہیں، 2 یہاں ایسے کر کے، اور ایک واحد کا، ایک جمع کا، اس طرح سے متکلم۔ اور اس کے بعد نمبر 7 کا جو ہوتا ہے سب میں وہ ہا سے ہوتا ہے، جس طرح لہو سے لہا، انہو سے انہا۔ اس کے لیے ہم نے ایک ایگزامپل یاد کی تھی، رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت ابو بکر کے لیے ہم کہیں گے
راضی ہوا اللہ تعالیٰ ان سے یا اس سے, بیسیکلی اس سے ہے, عنہ اس ایک مذکر سے, اور عائشہ رضی اللہ کے لیے ہم نے کہا تھا عنہا, راضی ہوا اللہ تعالیٰ اس سے, اس ایک مؤنث سے. اس ریفرنس کو ذہن میں رکھیں. اسی طرح آپ نے معا اور عندہ پڑھا تھا, تو معہو سے معہا, عندہ سے عندہا, یہ ہو گیا. ہر ٹیبل میں نمبر 7 پہ جو ورڈ آ رہا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے. اٹیچمنٹ کی صورت میں وہ ہاں بنتا ہے, انڈیپینڈنٹ ہونے کی صورت میں وہ ہیا بنتا ہے. تو انڈیپینڈنٹ والے کون سے تھے؟ ہوا ہم کے ضمائر تھے, تو ہوا کے اگینسٹ ہیا, اور ہا کے رب ہو یعنی قلم ہو یا کوئی بھی تھا وہ جو اٹیچڈ ہو تھا اس کے اگینسٹ ہاں, یہ ہو گیا. اور اس کے بعد جو فعل میں ہم نے پڑھا تھا مؤنث کو تو تا ساکن لگانی ہوتی ہے, اس کی مثال عورت سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں. عورتوں کے نام ہوتے ہیں, نصرت ہوتا ہے نا, اور ندرت ہوتا ہے, عفت ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہر نام, بہت سے نام خواتین کے تائے ساکن پہ اینڈ ہوتے ہیں. تو ہم نے اس طرح سے کیا تھا کہ اگر فعلہ ہے اس سے ایک مذکر نے کیا تو اس کا مؤنث بن جائے گا فعلت. اسی طرح جعلہ سے جعلت, فتح سے فتحت, اینڈ سو آن. اس طرح سے مؤنث بنائیں گے. اب میں تو خود مؤنث ہوں تو میں یہ نہیں کہہ سکتی جو ہمارے سر کہتے ہوتے ہیں مذاق میں ہمیشہ, جب بھی لوگ کہتے ہیں سر مؤنث نہیں آ رہی سمجھ آ, تو اسے کہتے ہیں مؤنث ذرا مشکل ہوتی ہے, مشکل سے سمجھ آتی ہے نا. تو میں نے تو کہا نہیں تھا, لیکن آپ نے چونکہ کہا کہ مشکل ہے تو میں نے کہا شاید یہ بات بھی صحیح ہو. اینی ویز آگے چلتے ہیں, ذرا دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے آج ہم نے پہلی سلائڈ نا تھوڑی دیر کے لیے جب بات کر رہی ہوتی ہے نا, بس تھوڑی دیر ریسٹ پہ چلے جاتی ہے میری پہلی سلائڈ. تو آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, ہم کریں گے کچھ MCQs کی پریکٹس کریں گے. اسٹارٹ کرتے ہیں اس طرح سے, اور میں نے آپ کے لیے 100 MCQs آپ کے لیے جو ہے نا میں نے سارے کلیکٹ کیے ہیں, کچھ خود سے نیو بنائے ہیں, کچھ میں نے مختلف جس طرح کہ آپ پہلے کر چکے ہیں ان میں کچھ چینجز کی ہیں, کچھ جو آپ کے ایگزام میں آ سکتے ہیں اس پیٹرن پہ میں نے کچھ MCQs آپ لوگوں کے لیے نا سارے یہاں پہ اکٹھے کیے ہیں. تو ان کو 1 by 1 لے کے چلتے ہیں. لیٹس سی, ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ سارے کر سکیں, سلائڈس آپ سے شیئر کر لیں گے, جتنا ٹائم ممکن ہوگا کلاس کا ہم اس میں ان کو کور کرتے ہیں. تو ان کے جو جوابات ہیں وہ آپ لوگوں سے میں ایکسپیکٹ کروں گی, ٹھیک ہے. اس لیے آپ لوگ اپنی انٹریکشن رکھیں, ہینڈ ریز کر کے ٹائم کو بالکل ذرا کوئکلی بچاتے ہوئے جیسے آپ سے کہا جائے آپ اس کا جواب 1 by 1 دے سکتے ہیں. کوئی اور ہمارے ساتھ ہے ظاہر ہے, کوئی سسٹر بھی ہیں ساتھ جو تھوڑی سی ہیلپ اگر کریں نیم لینے میں, سسٹر عظمیٰ وغیرہ میں سے نہیں ہے نا کوئی؟ میں دیکھنے نظر نہیں آئی ہے. ہاں ابھی نہیں ہے, چلیں اٹس اوکے. تو ایسا کرتے ہیں, یہ بتائیے کہ ابھی جو ہم لوگوں نے آپ سے شیئر کیا تھا فائنل کوئز کا سیمپل, کچھ لوگوں نے سالو کیا ہے وہ, کوئی اس کے بارے میں کوئی بات کہنی ہو آپ لوگوں نے, کچھ اس میں کیسا لگا, سوالات کوئی مشکل تو نہیں تھے آپ کے لیے یا کچھ نہیں مشکل نہیں تھے الحمدللہ. آسان تھا؟ سب لوگوں نے کیا ہے یا ابھی تو میرے خیال ہے سب لوگوں نے نہیں کیا ہوگا. تو اس میں تھوڑا سا یہ مقصد تھا کہ آپ لوگ اس سیشن سے پہلے اگر کر لیتے یا کم از کم اس کو دیکھ لیتے تو اس سے ریلیٹڈ بھی کوئی بات کرنی ہوتی تو اس میں آپ پوچھ سکتے تھے, لیکن کوئی بات نہیں, آپ لوگ گروپ میں بھی پوچھیے گا بعد میں. تو ہم دیکھتے ہیں, میں نے رینڈم کوشچنس اس لیے اس میں اس طرح سے رکھے کہ کوئی تھیوری کا کوشچن آ جائے گا, یعنی ٹیکسٹ پورشن میں سے, کوئی گرامر کے پورشن میں سے آ جائے گا, کوئی تھوڑا سا ایک طرح سے وہ جو آڈ ون آؤٹ والا کوشچن آ جائے گا. تو اس طرح سے تھوڑا آپ کا برین اسٹارمنگ زیادہ اچھی ہوگی. سسٹر اقرا نے کچھ پوچھنا ہے, پوچھے جی. سسٹر اقرا آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے بات کریں. نہیں میڈم سوری غلطی سے ہو گیا تھا. اچھا, اس سوال کا جواب کون دے گا؟ سبحان ربی یہ العلیٰ میں کن 4 باتوں کا ذکر ہے؟ پی کون او سی سوری ہاتھ کھڑا بتائیے کس میں مائک بہت لبنہ جبین کا مائک آئی تھنک میوٹ کر. کون جواب دینا چاہ رہا ہے؟ میڈم میں بتاؤں؟ جی بتائیے. اس کا جواب ہے بی, پاکی, ربوبیت, اپنائیت, بلندی.
ٹھیک ہے جی. باقی سبحانہ سے ہو گیا, ربوبیت رب سے ہو گیا, اپنائیت یا سے ہو گیا, الاعلیٰ سے بلندی ہو گیا. اگر اب یہی سوال آپ سے سبحان ربی العظیم کے بارے میں کریں تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا پاکی، ربوبیت، اپنائیت، عظمت. عظمت. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس میں, ٹھیک ہے. پاکی, ربوبیت, اور پھر ترتیب بھی یاد رکھنی ہے اسی ترتیب سے. اگر کہیں پہ ترتیب جی. چینج ہوئی ہوئی نا کہ ربوبیت یہاں پہ لکھا ہوا یا کچھ, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی جو درست چوائس ہوگی اس میں یہی سیکوینس بھی آ رہا ہوگا. یہ سوال سب کو سمجھ میں آیا ہوا ہے نا؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد جس طرح گرامر میں حل ضرب زیدن, اس کا اگر ہم نے ماں کے ساتھ جواب دینا ہے تو کیا جواب ہوگا؟ کیسے ہو گیا؟ فرسٹ والے کا یہ تھوڑا سا یہاں سے مسنگ لگ رہا ہے اے آپ کو, لیکن آپ اس کا جواب کون دینا چاہیں گے؟ میں ڈی, ماں ضرب زیدن. اچھا, اس کا ترجمہ بتائیے. حل ضرب زیدن کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس نے مارا زید کو؟ اس نے مارا زید کو. ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہے نا سب کو کہ اس نے مارا زید کو؟ کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں؟ زید کے اوپر 2 زبر سے. زائد کے اوپر چونکہ زبر ہے, اس کا مطلب ہے کہ زائد وہ ہے جس کو مارا گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح نصرہ سے اگر ہم بنائیں حل نصر تم زیدن, اب نصر تم سے جواب کیا بنتا ہے؟ اس میں سے کیا درست چوائس ہے؟ نصرنا. ماں نصرنا زیدن. یہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں, یہ تو تم نہیں کا ہو سکتا. جواب نا سے دیں گے. تم کا جواب نا سے دیں گے. بالکل, یہ اس کا جواب ہے. سسٹر زونی نے کچھ پوچھنا ہے, جی پوچھیں یا بتانا ہے. اگر آپ نے بتانا ہے تو بتائیے. سوری غلطی سے ہو گیا. اچھا, جو اس طرح, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اس طرح کے جو کوشچنس ہیں ان میں جسٹ آپ ایک, ضروری نہیں ہے کہ سارے مائنیوٹلی آپ کر بھی سکیں, سب کو نظر آ رہے ہیں یا نہیں. اس میں آپ کو جسٹ ایک آئیڈیا دینے کے لیے کہ اس طرح سے آپ نے جو میچ کرنے والے کوشچنس کرنے ہوتے ہیں کہ آپ نے اسماء اشارہ کو ملانا ہے کہ کیا یہ مذکر کا اشارہ ہے, مؤنث کا اشارہ ہے, یا پھر اس میں ہم نے کیا معنی آ رہا ہے. مثلاً یہ کہ واحد ہے یا جمع ہے, تو حاضہ کو فار ایگزامپل کس سے میچ کریں گے؟ ہاں, الائی کو کس سے میچ کریں گے؟ ہاذا یہ مذکر. اور ہا الائی, اس کا مطلب اس کا یہ جواب ہوگا. آپ کو اس یہ کا سب. جواب کرنا ہے. ہا الائی میں ہا ہاؤلائی الائی یہ سب. یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ایک ہے, اور یہ سب. ٹھیک ہے, یہ سب. جی, اور ذالکا, ذالکا وہ مذکر. یہ سب کو پتہ ہے نا, سب لوگ فالو کر رہے ہیں نا اس کو. ہاں یہ جی. ہے ذالکا وہ مذکر. جی پتہ. اور اولائکا, اولائکا وہ سب. اولائکا وہ سب. ٹھیک ہے, اور وہ سب کے آپشن کی طرح, وہ سب کے آپشن کی طرح اس میں وہ سب آخر میں. اینڈ میں. اینڈ میں. اور ذالکا کی آپشن کون سی تھی پھر؟ وہ ذالکا کی پھر یہ تھی. ٹھیک ہے, ایسے جی تھی نا؟ وہ ادھر میری مذکر. پکچر آ جاتی ہے نا. ہاں ٹھیک ہے, یہاں پہ وہ پکچر آئی ہوتی ہے تو میرے سے غلط ذالک ہوتی وہ ہے. مذکر. ٹھیک ہے جی. اسی طرح حاضہ ہی, حاضہ ہی یہ کا مطلب ہے یہ مونس. یہ مونس. ٹھیک ہے, اور دل یہ کا کیا؟ وہ دل مونس. کا وہ وہ مونس. مونس. تو جی. اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اس طرح سے, یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے. حاضی کا وہ آپ نے ڈفرینٹ کلک کر دیا تھا, یعنی وہ آپ نے بولا ٹھیک ہے, لیکن وہ مارک ڈفرینٹ کی ہے. حاضہ ہی کا مونس. یہ نا, جی. یہ ہے نا. ٹھیک ہے, یہ جسٹ یہ تو ہم نے بہت دفعہ کیے ہیں. جسٹ ایک اس کی چونکہ ایڈیٹنگ نہیں نا ہو سکتی ہے, پکچر فارم میں آیا ہوتا ہے, تو یہ جسٹ میں نے وہاں سے امیجز لے کے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے تھوڑا سا آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے کہ کیسے ہم اس طرح سے ان کو کرتے ہیں نا. یہ کچھ جگہ پہ تو اس کی جو پکچر ہوتی ہے نا بلرڈ ہو جاتی ہے. یہ کیا تھا؟ علیمہ والی ٹیبل. اچھا, پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں تو خیر دیکھیں کہ یہ عمل کیا, اور اب ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا کنفیوز کرنے کے لیے, ہاں اس میں بھی ہے نا, اس نے جانا اور اس نے عمل کیا. آپ نے ان کو یہاں سے پہچاننا بھی ہوتا ہے نا کہ یہ عامل کی بات ہو رہی ہے یا علم کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے نا. ہاں ٹھیک ہے, جی, اس یہ میں بڑا سارے, ٹرکی ہوتا ہے, ذرا خیال کیجیے گا. میں نے بھی ایک دفعہ غلطی کی تھی, ہاں اس میں بتا دوں کہ لوگ ہم نے ذرا غور سے دیکھنا ہوتا ہے. جی, اس میں تھوڑا سا غلطی ہو جاتی ہے. اس میں آپ نے شروع سے یہاں سے نا حروف مادہ کو پہچان لینا ہے. ان کو بے شک آپ اپنے پاس رفلی ایک رف پیپر بھی رکھ سکتے ہیں, آپ ساتھ لکھ لیا کریں کہ یہاں پہ علم کی بات ہو رہی ہے
جبکہ یہاں پہ عمل کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایک تو آپ نے بالکل اس کو کنفرم کر لیا. اب عمل کرنے کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ یہ عمل تو اس سے ریلیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا, تو اس سے ریلیٹ ہو رہا ہے. بعد میں آپ اس کا واحد جمع اور وہ سب دیکھ کے آپ اس کو کمبائن آپس میں جوائن کر لیں. سنا کا تو مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ سمیہ سے تعلق رکھتا ہے. اس کے علاوہ مارنے والا جو ہے وہ ضربہ سے ہو گیا, اور یہ جو ہے ہو سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی ایک یا دو, ظاہر ہے کہ جب آپ کو میچ کرنے کے لیے دیے جائیں گے ایک یا دو کچھ رانگ آپشنس بھی ہوں گی, کچھ جو ہیں ایکسٹرا آپشنس بھی ہوں گی. ٹھیک ہے نا, تو اس کو کوئی آپ میں سے کوئی اٹیمپٹ کرنا چاہ رہا ہے, بتا دیں سب کا کوئکلی جی. اگر بتا دیں. جی اس نے سنا سامعہ, ٹھیک ہے, ان سب نے جانا عالموں, ٹھیک ہے جی, میں نے عمل کیا عملتو, جی بالکل, ہم نے مارا ضربنا. یہ ہے ضربنا. جی ٹھیک ہے, اینڈ یہ میں نا, ہے ضربنا. ہاں ٹھیک جی. ہے. تو بس یہ آپ نے, یہ ویسے بہت ہی آسان ہوتے ہیں, اس میں ذرا بھی مشکل نہیں ہوتی. اب اسی طرح بیچ بیچ میں کہیں ٹیکسٹ کے کوسچنز اگر آپ سے پوچھ لیں تاکہ آپ کو دونوں طرف سے آئیڈیا رہے کہ کیسے چلنا ہے. تو سورۃ العصر میں عصر کا کیا ترجمہ بتایا گیا تھا آپ کو؟ زمانہ. زمانہ. ٹھیک ہے. پھر قرآن سیکھنا آسان ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم نے یہ کچھ آیات پڑھی تھی نا اینڈ میں, یہ والی آیت پڑھی تھی, یہ پڑھی تھی. اب آپ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. بالکل, کیونکہ یہ جو ہے نا آسانی کی بات ہو رہی ہے, تو یسرنا والی جو آیت تھی یہ آسانی کو بتا رہی تھی. اب قرآن سیکھنے کا طریقہ یاد ہوگا آپ کو, بالکل آخری کلاسز میں ہم نے اس طرح کی کچھ چیزیں سم اپ کی تھی نا. قرآن سیکھنے کا طریقہ, ایک تو ہم نے ربی زدنی علما کی دعا پڑھی تھی, پھر ہم نے کہا تھا کہ تمام وسائل خاص طور پہ قلم آپشن نمبر ڈی, پھر مسابقت کا جذبہ رکھنا ہے, ایکم احسن عملا. تو اس میں یہ ساری چیزیں ہی شامل ہو گئی. اس کا مطلب ہے آپشن نمبر ڈی اس میں سلیکٹ کریں گے. سب لوگوں کو یہ بات کلیئر ہو رہی ہے نا, سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی. جی. ٹھیک ہے. اسی طرح لم یلد, اب یہ دو ملتے جلتے فریزز ہیں نا, ایک تھا لم یلد اور ایک تھا ولم یولد. تو اس نے نہیں جنا. یہ ایکٹیو وائس تھا. ٹھیک ہے, تو کیا تھا لم کا ویسے بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے, اس کا میننگ ہم نے پڑھا ہوا تھا نا کہ ماضی اور نفی, ماضی کی نفی ہوتی ہے, ماضی میں نفی ہوتی ہے, تو کیا معنی ہوگا؟ اب جنے گا تو ہو نہیں سکتا نا, یہ تو ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ماضی کی بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے پریزنٹ ٹینس ہے اس طرح, تو اس نے نہیں جنا, یہ ہوگی اس نے نہیں جنا. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ نے کرنا. یہ ہوتا ہے ایم سی کیوز میں کہ آپ نے نا جو رانگ آپشنز ہیں ان کو کوئکلی رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے نا, کہ کچھ چیزیں تو بالکل پاسبل نہیں ہے, کہیں پہ آپ کا ٹینس اپوزٹ ہے, کہیں پہ کچھ ہے, اس کو آپ کراس کرتے جائیں, نکالتے جائیں. اگر کچھ لوگوں کو مشکل ہوتی ہے, ابھی تو آپ نے کافی دفعہ کوئزز کر لیں, لیکن اگر تھوڑی سی بھی مشکل ہوتی ہے تو آپ لوگ اپنے پاس ایک رف نوٹ بک رکھ کے تو اس کی مدد بھی لے سکتے ہیں اپنے کوشچنس کے لیے. من کے دو معنی ہم نے کون کون سے پڑھے تھے؟ من ربو کا ہم نے آپشن نمبر اے, کون اور جو. کہاں تو بالکل ہو ہی نہیں سکتا, پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کب بھی نہیں ہے, کیونکہ کب کے لیے تو کچھ اور لفظ ہوتا ہے عربک میں, ابھی آپ نے نہیں پڑھا. اور کیوں بھی ابھی, کیوں والی بات بھی ابھی نہیں پڑھی, کیوں کیسے, ابھی اتنے ساری چیزیں ہم لوگوں نے نہیں اس میں کور کی. ایکم احسن عملا جو ہم نے پڑھا تھا, تو ہم نے اس میں کیا ترجمہ کیا تھا؟ کون تم میں سے. کون تم میں سے. ویسے بھی کم ہے نا, کم جو ہے وہ تم کے لیے ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے نا, ربو کم ایسے ہوتا ہے نا, تو اس سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ہے وہ تم کے لیے ہوتا ہے. اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم میں سے, یہ تو بالکل ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ نہیں ہو سکتا. تم کون ہو, ایسا تو کوئی سوال ہم نے کرا نہیں ابھی تک. اور ان میں سے کون ہوگا, ان میں سے جو ہوتا ہے اس کے لیے تو, ان کے لیے تو ہم ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ آپشن بھی نہیں ہے. یہ جسٹ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا وے ایکسپلین کر رہی ہوں کہ کیسے اگر ایم سی کیوز ایک دم سامنے آئے تو کچھ لوگ تھوڑا سا اس کو اینالائز کرنے میں ان کو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. تو اس طرح سے آپ ان کو اینالائز کر سکتے ہیں. اب اس میں سے یہ کہ جو جمع مذکر کا لفظ ہے, یہ آپ سے پوچھا گیا ہے. یہ وہ سسٹر بتائیں نا جن کو ذرا نمبر کون سی آپشن؟ ڈی اور سی, ڈی یعنی یہ, کیونکہ یہ بھی جمع مذکر ہے اور یہ بھی جمع مذکر ہے. یہ واو نون سے جمع بنائی گئی ہے, یہ یا نون سے جمع بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے. مسلمون کی جمع بھی مسلمینہ ہو سکتی تھی. مومنین مطلب کی جمع سے مراد ہے ایک اور جمع, اور مومنین کی بھی ایک اور جمع مومنون ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے, تو دو پاسبل جمع ہوتی ہیں. استاذہ ایک سیکنڈ بیچ میں انٹرپٹ کروں,
ये उस टाइम मुझे यही प्रॉब्लम थी, जैसे ये स्वालिहात आती है ना, इसमें बहुत मैं कंफ्यूज होती हूँ। देखिए आपसे पूछा कि जमा मुजक्कर, तो आप जब इसको देखेंगे तो आप कहेंगे नो, ये तो जमा मुजक्कर नहीं है, ये तो जमा मुन्नस है, इसलिए कि इसके एंड में अलिफ ता आ रही है, और अलिफ ता जो है वो जमा मुन्नस की निशानी होती है, ये आप याद रख लें। आप उर्दू का अच्छा, ये कोई जमा मुअन्नस है, और वो जी जो थी मुजक्कर की, ये ना जमा थी दोनों मुजक्कर जो है मुस्लिमीन। ना, उसकी उसकी तो ये तो हमने बहुत इसकी फेमस निशानियां हैं, वाव नून और या नून। ये उर्दू के अल्फाज मुस्लिमून और मुस्लिमीन से याद रख लें, ठीक है। जिस तरह देखें उर्दू में भी हम कहते हैं ना, मसलन किताबों किताबों को संभाल के रखो, हम कहते हैं ना किताबों, तो वाव नून आ गया। या मैं कहती हूँ कि ये किताबें उठा लें जरा ना, तो या नून आ गया। इसका मतलब है कि उर्दू में भी मुसलमानों ने ये कहा, मतलब हर जगह पे दोनों नहीं इस्तेमाल होंगी, लेकिन आप बेसिकली क्या है कि आपने अपने जहन में कोई रेफरेंस को ना बिठा लेना अपने जहन में कि वाव नून। अब किताब उर्दू में जो है, मतलब हम उस तरह से आप याद कर लें कि ये वाव नून या नून का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो अरबिक में जो जमा और मुजक्कर बनाना होता है, उसके लिए वाव नून और या नून जो है ना, ये इसकी निशानी होती है। ये हमारी वो जो स्लाइड आती होती है ना इस्म फेल हर्फ की, उसमें ये सारी निशानियां बार बार हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, उसको आप देखते रहते हैं बार बार। दोबारा आएंगे इस तरह के सवाल और भी देखते हैं। सामे उनका मतलब क्या है, कौन बता रहे हैं? अच्छा सब लोग कोशिश करें, जो लोग पहले नहीं बात करते या कुछ है, वो आज अगर आपने क्लास में थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें तो अच्छा है। जस्ट आपने क्या करना है कि माइक ओपन करना है और आपने जवाब देना है, हैंड रेस कर लें आप तो भी ठीक है। सामे उनका क्या मतलब होगा? जिसको सुना गया। जिसको सुना गया, तो कौन सी ऑप्शन होगी? एक। जिसको सुना गया। अच्छा अब आप देखिए, आपको जब सामे उनका मतलब आ गया, एक तो ये कि इसका वो ग्रामर में हमने क्या नाम पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इसको क्या कहते हैं? इस्म फाइल कहते हैं, ठीक है। और ये इस्म फाइल कौन से टेबल में से आया है? सामिया। समया में से आया है। अब अगर सामे उन है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि आबिदुन का क्या मतलब है, तो उसकी क्या ट्रांसलेशन आप बताएंगे? आबिदुन इबादत करने वाला। इबादत करने वाला, और वो कौन से टेबल में से आया होगा? आबादा, यानी अबादा में। कि इसी तरह नासिरुन नसरा में से आ गया, इसी तरह जो है वो जाकिरुन जकारा में से आ गया, खालिकुन खलका में से आ गया। तो इसका मतलब है कि इन ये जो इस्म फाइल होते हैं, इनका तो एक ये मखसूस इनका पैटर्न है, इसको मोल्ड बना लें, सांचा बना लें कि फाइलुन का ये वजन है। इसको अरबिक में वैसे कहते हैं वजन। वजन से मतलब है कि ये फा आइन लाम असल में हरूफ मादा थे, इस फा के साथ एक एडिशनल हमने अलिफ को खड़ा कर दिया यहाँ पे, और इसके नीचे जेर जरूर आएगी, इसके ऊपर जबर जरूर आएगी, और यहाँ पे तनवीन आएगी, कोई ना कोई तनवीन आएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो है ना एक एक वर्ड हमारा जो तैयार हो जाएगा, उसको हमने हमेशा इस्म फाइल कहना है। अब फाइल लाम की जगह पे अगर आपको हमने दे दिया हामीम दाल, और हम कहें कि इसे इस्म फाइल बनाए, तो ऑब्वियसली आप आराम से बना लेंगे, वही हामिदुन। अगर मैं आपको खालाम दाल दे दूं तो आप इसे बना लेंगे खालिदुन। जी सिस्टर जिनके हैंड रेज है, अक्सा जी क्या कहना चाह रहे हैं सिस्टर? यहाँ पे सामियान का सुनने वाला नहीं होगा? वेरी नाइस। सामिउन सुनने वाला है, ये किसने कहा था जिसको सुना गया? देखो ठीक है, देखो ठीक है, आप सुन रही थी, इसका मतलब है आप हैं, आप जो है ना सही मानों में सामिआ हैं, और हम लोग जो हैं हम इस पे तवज्जो हमने नहीं रखी, आप हैं सामिया, ठीक है ना। तो मैं आपको कहूंगी हिया, आपके बारे में कह रही हूँ, हिया सामिआतुन, ठीक है। ahsanti इसका मतलब होता है ahsanti, ahsanti का मतलब होता है वेल डन, ahsanti या उख्ती, ठीक है ना। कुछ अरबी सीखी है आप लोगों ने, कुछ एंजॉय किए अरबी के छोटे छोटे जुमलों को। और कौन से हैंड रेस हो गए हैं? सिस्टर अक्सर ने शायद पहले बात कर ली है, और कुछ और बात करना चाह रही है? किसने बात करनी है? इसका हैंड रेस था, बात कर लें जी मेरा हैंड रेस था। जी 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 मैं करूं बात? जी जी श्योर श्योर।
जी, ये सामे उन की जमा हम करते हैं ना, सामे ऊन या सामे ईन, तो ये अगर ये आएगा कि कौन सी है जमा इसकी, तो हम दोनों लिखेंगे या एक लिखना होगा उसमें? देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये वो सवाल है जो हमने बिल्कुल एंड में जाके जो हमने सीखे थे ना, सरफ सगीर भी बनाई थी, फिर हमने उनके इसम फाइल इसम मफूल की हमने जमा वगैरह बनाना देखी थी ना, कि फाइलून भी बनता है, फाइलीन भी बनता है, और इस तरह से ना। तो इसमें ये है कि ये जो है सामे उन, अगर आपको बिल्कुल सामे उन दिया हुआ है ना, 2 पेश डाल के दिया हुआ है, तो आप इसकी जमा सामे उन ही बनाएंगे, ठीक है। और यानी अगर ये आपको इस तरह से दिया हुआ है ये, तो आप इसकी जमा कैसे बनाएंगे, सामे ऊना, सामे ऊना। ये ऊना है, असल में हम इसको साइलेंट में ऊन कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको हमने वर्ड दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ, सपोज हमने इसको साइलेंट छोड़ दिया, मे बी हमने कोई ऐसी चॉइस दी हो कि इसकी पॉसिबल जमास क्या हो सकती हैं, तो तब आप दोनों, अगर आपके पास दोनों ऑप्शंस मौजूद है ना, तो आप दोनों ऑप्शंस को फिर चूज करेंगे। वो तो हम एमसीक्यू ही ऐसा बनाएंगे ना कि आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं आपके लिए छोड़ेंगे ना। वो तो अगर हमने इसको साइलेंट दे दिया, सामे दे दिया, तो इसका मतलब है कि आप सामे ऊना और सामे ईना दोनों बना सकते हैं। अलबत्ता अगर हमने आपको वर्ड सामे इन दिया है, तो आप इसकी जमा सामे ईना सिर्फ चूज करेंगे, ये चूज नहीं करेंगे। अगर हमने आपको सामे अन दिया है, उस केस में यहाँ पे अलिफ भी होगा। कैसे लिखेंगे उसको, ऐसे लिखेंगे। अगर हमने आपको सामे अन पे वर्ड दिया है कि इसकी जमा बनाए, तो आप इसकी ये जमा चूज करेंगे। और ये पैटर्न बिल्कुल वही है जो शुरू में आपने मुस्लिमुन, सालेहुन, काफिरुन वगैरह से 2 किस्म की जमा ऊना और ईना से सीखी थी। ये वही कॉन्सेप्ट है जो आपके इसम फाइल में भी चलेगा, इसम मफऊल में भी चलेगा, हर जगह पे चलेगा। समझ आ गई होगी, आई होप के क्लियर हो गया सिस्टर आपको। जी, एक बात मैंने पूछनी थी जी उसी के मुतालिक, कि जैसे ये सामे उन, सामियन, सामे अन, ठीक है, हो सकता है, तो क्या ये इसम फाइल सिंगल पेश के साथ सामे भी हो सकता है? नहीं, उस सूरत में होगा। अच्छा आप खुद सोच के बताएं किस सूरत में होगा। चले, ये भी एक सवाल आ गया, इसके लिए कोई सूरत पैदा करो ना। कोई और हेल्प करना चाहे तो वो बताएं कि अगर हमने सिंगल पेश के साथ रखना हो सामने ऊ, तो फिर कैसे हम रखेंगे उसको। ये आपकी रिवीजन है। सोचे 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 सोचे। देखें, अगर आपने इसको सिंगल पेज के साथ रखना है, ऐसे आप कहते हैं यूं हो, तो ये तो पॉसिबल है ना। अरबिक में ऐसा हो नहीं सकता। किस सूरत में हो सकता है, अगर यहाँ पे अलिफ लाम हो, अस्साम हो, उस सूरत में यहाँ पे वैसे तशदीद आ जाती है ऑटोमेटिकली, तो अस्सामे तब बनेगा। सेम अस्सामे भी बन जाएगा, अस्सामे भी बन जाएगा। इस सूरत में जब अस्सामिया बनेगा, तो फिर वो अलिफ नहीं लगाना, वो जो अलिफ हम लगाते थे ना, ये वाला अलिफ, ये अलिफ जो है तनवीन की सूरत में लगता है। ठीक है, क्लियर होगी बात है जी। इसी तरह अगर हमने अल फाइलू बनाना हो, तो हम या तो फाइलून बनाएंगे, सिंपल, मतलब या तो फाइलून बनाएंगे, या फिर हम कहेंगे अल फाइलू कहेंगे, तो इसको एक पेश कर देंगे। ठीक है, मफ्तूह का मानी, मफ्तूहुन का मानी क्या होगा, जिसको खोला गया। जिसको खोला गया। जिसको खोला गया। अच्छा अब बताएं कि अगर किसी मोनस को खोला गया है, तो उसकी अरबी क्या होगी, या आप मुझे वैसे खुद से बताएं कि अगर हमने सवाल उर्दू से अरबी बनाने का पूछा, मैंने अगर पूछा कि जिस मोनस को खोला गया, तो वो क्या होगा, मतलब कोई मदरसा खोला गया तो मफ्तूहातुन हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा अब आप एक और बात बताएं कि मफ्तूहातुन की जमा क्या होती है। ये सिस्टर को बताएंगे। कौन सी सिस्टर थी, नूर अफशा। चले, मफ्तूहातुन की जमा तो बताएं जरा। मफ्तूहातुन की जमा, सदा ये तो खुद ही एक जमा है ना। अलिफ ता लगाए, नहीं अलिफ ता लगाएंगे, अलिफ ता। हाँ सही। ये देखें, ये है ऐसे मफ्तूहातुन, ये है। अच्छा ये तजवीद अगर आप इसकी दुरुस्त बोलेंगे ना, तो आपको फिर जमा वाहिद की कंफ्यूजन नहीं रहेगी। आप इसको कहेंगी क्विकली मफ्तूहतुन, और इसको कहेंगी मफ्तूहातुन, तो फर्क है। मफ्तूहतुन मफ्तूहातुन, मोमिनातुन मोमिनातुन, मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन। तो जब इसको आप आतुन करके बोलेंगे, तो आपको याद रहेगा कि आतुन जो है वो जमा। ठीक है, तजवीद की
जो कायदा है रिक्वायरमेंट भी यही है, ठीक है। अच्छा, सिस्टर सजल से मैं अभी क्वेश्चन लेती हूँ। अभी मुझे ये साथ ही बता दें कि मफ्तूहुन की जमा क्या होगी? मफ्तूहात हूना हूना मफ्तूहूना मफ्तूहुन, मुजक्कर में बताना। जी बिल्कुल, मफ्तूहुना। और ये किस पैटर्न पे है? मुस्लिमूना। एक पैटर्न हाँ याद कर, जी, मुस्लिमूना, इसके 2 पेश हैं मुमिनूना, और इसके सालिहूना, काफिरूना, ठीक है ना। तो ये मफ्तूहुना, इसका मतलब है कि अगर आपसे मैं एक और सवाल कर लूं, सवाल आपको ऐसे दिया हो कि मफ्तूहुना या मफ्तूहुन, आपको इन दोनों में से कोई वर्ड दिया हो, या मैंने ये दिया हो आपको वर्ड, या मैंने ये दिया, मैं पूछूं ये मुजक्कर है या मुन्नस है, तो आप क्या बताएंगे? मुजक्कर। मुजक्कर है, मुजक्कर। तो मुजक्कर है। और अगर आपको हाँ, इस तरह का कोई वर्ड दे दिया, मफ्तूहातुन दे दिया, सालिहातुन दे दिया है, ये काफिरातुन दे दिया है, मोनस और है। एक वर्ड और कोई दे दिया है, तो हम पूछें कि ये क्या वर्ड्स हैं, इनका जेंडर बताएं, तो आप क्या बताएंगे कि ये मोनस वर्ड है। मोनस। यही आपकी रिवीजन है, यही आपकी प्रैक्टिस है, इसी को आपने लेके चले। जी सिस्टर सजल ने कुछ पूछना है, पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी मैम, मुझे ये पूछना है कि अगर वर्ड के ऊपर कोई हरकत नहीं है लेकिन ऑप्शंस में किसी एक पर हरकत है, तो फिर उस सूरत में क्या, फिर दोनों ही हम सिलेक्ट करेंगे? जिस तरह भी सामे वर्ड है या फातिह वर्ड है, तो जी। उसकी ऑप्शंस फातिहून और फातिहीन, तो फिर क्या होगा इसकी? फातिहीन है, यानी अगर एक पर जबर है या जेर है, तो फिर उस सूरत में हम क्या? ऐसा इतना इतना ट्रिकी क्वेश्चन हम नहीं देंगे फिलहाल, नहीं, वैसे इस तरह के ट्रिकी के क्वेश्चन अलावा आते हैं बात, नेक्स्ट लेवल पर। हाँ जी, नहीं ट्रिकी के अलावा जाहिर है वैसे तो उस तरह तो सेंस नहीं बनेंगे ना, कि अगर हमने आपको ऑप्शन इस तरह की दे दी है, सवाल जो है वो उसके साथ कंपेटेबल नहीं, यूं नहीं होगा ना। अगर सवाल में उसके ऊपर कोई भी हरकत नहीं है, तो जाहिर है आपके जहन में आएगा कि इसके तो दो पॉसिबल आंसर्स हैं, तो आपको हम चॉइस भी ऐसी ही देंगे जिसमें दो पॉसिबल आंसर्स की चॉइस होगी, ठीक है ना। अदरवाइज उस क्वेश्चन को हम अपने पार्ट पे उसको हम गलत समझेंगे, उसकी हम करेक्शन करेंगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। क्योंकि ये तो नहीं हो ठीक सकता है। ना कि एक स्टूडेंट जो है वो वाव नून से जमा सिलेक्ट कर ले, एक या नून से कर ले। फिर या तो ये हो सकता है ना ऑप्शन ए बी में ये हमने दोनों दे दी, तो सी में हम कह देंगे बोथ, ठीक है ना, जी फिर बोथ वाला करेक्ट होगा। जी, ऑप्शंस बनाए इस तरह ऐसा ऐसा सवाल दरअसल वर्कबुक में था, इस वजह से मैंने पूछा था। हाँ जी, वर्कबुक का आई डोंट नो, अगर आप वो इमेज दिखा दें दोबारा से, हम उसको देख लेते हैं। वर्कबुक उसमें में हमने एक ऑप्शन होगी बी एंड सी फॉर एग्जांपल, या ए एंड नहीं, सी, इस तरह का लेकिन होगा। वर्कबुक में कह रही है ना जाहिद में, वर्कबुक में कुछ ना कुछ हमारे जो है ना उसमें कुछ प्रिंटिंग की और कुछ ऐसी चीजें हैं, मे भी कोई ऐसी चीजें उसको इमेज दिखा दिया करें, तो हम लोग अपने पास नोट करते रहते हैं, नई नई प्रिंटिंग में अमेंडमेंट्स करते रहते हैं, तो मे भी तो ऐसे ऑप्शन में मुझे फिर बी और सी दोनों, यानी जी सॉरी, मुझे बी और सी दोनों सिलेक्ट करने, यानी उस सूरत देखें, अगर आपको हमने अगर एक मेरे ख्याल में आप एक अगर इसको यहाँ लिख के दिखा दें इनको, ये देखिए ये ना, अगर please। मैंने आपको सवाल पूछा है मैंने आपसे कि मुस्लिम की जमा, और मैंने आपको चॉइसेस दे दी है ना, एक मैंने आपको दे दी है मुस्लिमून दे दिए, ठीक है ना, एक मैंने आपको दे दी है मुस्लिमीन, और एक मैंने आपको दे दी है, मे भी एक मैंने कुछ गलत सी दे दी है, मसलन मैंने मुस्लिमात दे दिया, ये रॉन्ग सी चॉइस होगी। अच्छा देते हैं ना। और नंबर 4 मैंने आपको दे दिए ए एंड बी। अब आप मुझे बताएं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया, ये जाहिर डाल देते हैं इसमें, है ना। अच्छा ए मैं पर्सनली इसकी एंड आग बी में नहीं हूँ, आएगा। लेकिन चले। अच्छा चले बताएं ना, अब स्टूडेंट्स क्या सजल बोल रही थी, जी, बताइए इसका ए एंड बी आएगा। क्योंकि इसका ये मुस्लिम पे आपको ने खाली छोड़ दिया, तो अब वो इसको हमने मुस्लिम। खाली छोड़ दिया, ठीक है ना। तो अब ये जो सिस्टर वो है ना नूर अफशा, आपने मुस्लिम की जमा जो है ना वो ये मुस्लिमात हरगिज हरगिज नहीं सिलेक्ट करनी, ये नहीं हो सकता कि वो मुस्लिम को आप जमा बनाते बनाते उस बेचारे का जेंडर भी चेंज कर दें, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। ठीक है ना। अब अगर आपसे सवाल में मैंने मुस्लिम नहीं पूछा, मैंने तो आपसे मुस्लिमा पूछ लिया, सपोज सवाल चेंज कर देती हूँ, मैं इसको साइलेंट रखती हूँ, मैं कह रही हूँ मुस्लिमा की जमा बताएं, जी अब मैंने मुस्लिमात भी साइलेंट रखा हुआ है, तो आप आराम से इसकी ये वाला इसका जवाब आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि मैंने इसको भी साइलेंट रखा हुआ है ना, मैंने इसको मुस्लिमातुन कहा है, ना तिन कहा है, ना तन कहा है, इधर भी मैंने तुन तन तिन नहीं कहा, इसका मतलब है अगर ये साइलेंट है तो आपको इसका जवाब साइलेंट में मिल रहा है, ठीक है सिस्टर सजल भी और जूनी जी और जो लोग भी बात करे थे, फिल्जा भी, और सब, ये बात समझ आ रही है ना सबको? हाँ जी 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 आपकी प्रैक्टिस है कि मैं साथ में, एक तो मैंने आपको सवालात का जो पैटर्न दिया हुआ है, अभी करते करते डिस्कस करते करते मैं कभी सवाल चेंज कर दूं, कभी जवाब चेंज कर दूं, ऑप्शंस चेंज कर दूं, तो आप लोग अपना जो है ना, यही आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग है। अभी इसके
जी जी पूछिए। सॉरी, एक सवाल और पूछ लूं कि जी जो हमारा इस्म की पहचान बताई थी, जी तो उसमें हमें, आप जैसे अभी भी आपने बताया कि भाई तनवीन है और अगर अल लगा दें तो फिर आगे सिंगल पेश वगैरह आ सकती है, लेकिन जी हमारे चैप्टर नंबर 2B में ना इसम में मक्का, मक्का तू, उसपे सिंगल पेश दी हुई है, अल भी नहीं लगा हाँ हुआ, तो वो मुझे कंफ्यूजन हो रही है उससे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एक्सेप्शन, ये है एक्सेप्शन। अच्छा, ठीक ओके, है जी। अच्छा, ठीक है। और भी एक्सेप्शंस बहुत हैं, अब किस किस की बात करें हम इंशाल्लाह बाद में अगले कोर्स में बस बात। वो मसलन चाहिए, इब्राहिम, क्लियर ही ठीक करना है था ना, कि कोई इब्राहिम एक्सेप्शन, कोई होता है चीज ना, मुझे अल्लाहुम्मा समझ सल्ली नहीं अला आई। मोहम्मद वाला आले इब्राहिमा, वो जो था तो क्या था, इब्राहिमा कहीं पे आ रहा था, कहीं पे मतलब इब्राहिमुन तो नहीं आ रहा था, इब्राहिमुन नहीं आएगा, इब्राहिमू आएगा, लेकिन हामिदुन आएगा। तो इसका मतलब है कि हर नाम के एंड में तनवीन नहीं होगी, किसी नाम के एंड में जो है वो सिंगल हरकत होगी। इसी तरह किसी सिटी के एंड पे जो है वो सिंगल हरकत होगी, अलबत्ता कुछ सिटीज ऐसे आएंगे जिनके एंड में जो है वो तनवीन हो सकती है, ठीक है ना। तो एक्सेप्शंस आएंगे, मसलन आपने और भी बहुत सारे अस्मा पढ़े थे, आपने गैर पढ़ा था, ठीक है ना, गैर पढ़ा था ना, गैरुल मगदूबी अलैहिम। तो अब इसके ऊपर भी आपको तनवीन नजर नहीं आ रही थी, लेकिन ये इस्म था, ठीक है ना। इसके अलावा वो तो फिर बेशुमार आपको एक्सेप्शंस मिल जाएंगे। इंदा के ऊपर कोई साइन ही नहीं है इस्म का, मा के ऊपर कोई साइन ही नहीं है, लेकिन ये इस्म है। जी अच्छा, एक और बात बताइएगा कि 2A में जहाँ सूरह फातिहा की तर्जमे में अर रहमान के नीचे गज़बान लिखा हुआ है ना, शदीद गुस्से में, जी तो ये क्या है शदीद गुस्से में? जैसे रहमान तो रहम करने वाला जी, फाइल हो गया, तो गज़बान शदीद गुस्से में ये क्या है? मुझे इसकी समझ नहीं आई। ये एक पैटर्न है। अच्छा, ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न को फ़अलान कहते हैं। अभी आपके इंटरेस्ट के लिए मैं बता दूं, आपके कोर्स में ऐसी चीजें तो नहीं है, लेकिन इसको कहते हैं फ़अलान। फ़अलान का मतलब है कि अगर हरूफ मादा फ़ा ऐन लाम हो, तो फ़अलान जो है ना एक ऐसा वर्ड बनेगा जिसमें मुबालगा होगा, जिसमें स्ट्रेस होगी, जिसमें शिद्दत होगी। अब फ़ा ऐन लाम को रिप्लेस कर दें आप रा हा मीम से, तो आप बना लेंगे रहमान, ठीक है। ठीक है, अगर आप इसको रिप्लेस कर दें गैन दौर बा से, तो आप गदबान बना लेंगे। लेकिन देखें फिर रहमान का तो अच्छा मतलब एक बनता है मिनट, रहमान का मतलब होता है शिद्दत से रहम करने वाला, गदबान का मतलब होता है कि बहुत शदीद गुस्से में। इसी तरह कुछ और वर्ड्स भी शायद आपको लिखे हुए मिले, अतशान होगा बहुत ज्यादा प्यासा, जवान होगा बहुत ज्यादा भूखा वगैरह। जी अब आप। अच्छा, मतलब ये मुझे नहीं समझ आ रहा था कि अगर वो अ, रहम करने वाला के मानों में आ रहा है, तो ये फिर शदीद गुस्सा करने वाला क्यों नहीं बनता, शदीद गुस्से में क्यों बन रहा है, तो वो मुझे समझ नहीं आया। और दोनों तरह हो सकता है, ठीक है। असल ओके, में ये इसको कहते हैं मुबालगे का पैटर्न होता है, ठीक है ना, इसको सीगा मुबालगा कहते हैं, मुबालगा का पैटर्न होता है। और अभी QC4 वालों से पूछे ना, क्यों जाते हैं वो सीगा मुबालगा का मसला हल हुआ एक दिन सर के साथ जी हमारी QC जी, वो ड्राइंग चीज कर रहे हैं। सीखा मुबालगा जो है ना, वो तो बड़ी रॉकेट साइंस बन गई है, और अल्लाह अपने मजे हाँ, एक दिन आप लोगों की फिर जेर बहस आ गई थी ये चीज, तो फिर मैंने भी कुछ इनपुट दे दी थी, और सर कह रहे थे कि वो जो मैंने कहा था स्लाइड्स बनवाए ये वो ना, जी। ठीक है ना, वो जो उसमें सीगा। बेसिकली जहाँ कंफ्यूजन आती है वो, खैर यहाँ पर मैं नहीं डिस्कस करना चाहूंगा ये। हाँ, नहीं वो लोग, बड़ी उस पर डिस्कशन हुई थी, और उन दिनों जब मेरी आवाज काफी डाउन थी, तो जब मैंने आपका ये केस दोबारा से टेकअप किया, सर कहते हैं माशाल्लाह आपकी आवाज तो दोबारा से बड़ी अच्छी हो गई क्योंकि जब किसी का केस टेकअप करना होता है ना, तो फिर आप थोड़ी सी एनर्जी में बात कर रहे होते हैं ना ये उन दिनों की बात है। अच्छा, तो हमारे जो QC1 के स्टूडेंट्स हैं, तो हम आपको बता रहे थे कि कुछ पैटर्न्स होंगे, उसको हम कहेंगे मुबालगे का वर्ड है या मुबालगे का सीगा है, तो फ़अलान से आप याद रख सकते हैं, अदरवाइज इतनी जरूरत नहीं है। अभी आपको सिस्टर फिजा ने क्वेश्चन कर लिया, वो थोड़ा सीनियर भी है, तो उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया, मे भी कुछ और लोग भी इसके बारे में जानते हो। तो बहरहाल ये एक साउंड समझने, एक पैटर्न समझने, रहमान गदबान वगैरह, ठीक है, इसमें शिद्दत। और वैसे भी हमने, आपको याद होगा कि हमने रहमान और रहीम का डिफरेंस भी पढ़ा था ना इसी तरह से। तो आप इसी से याद कर लें कि फ़अलान से मुबालगा यानी अल्लाह ताला बहुत शिद्दत से रहम करने वाले हैं, और रहीम भी, अच्छा रहीम भी बेसिकली क्या है, वो भी इट्स अनदर पैटर्न जिसको फ़ईल का पैटर्न कहते हैं। और फ़ईल के पैटर्न में तसलसल पाया जाता है, तसलसल, ठीक है ना। और तसलसल क्या था कि अल्लाह ताला मुसलसल रहम करने वाले हैं, ठीक है, वो हमने रहीम के लिए हमने ये चीज याद की थी। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अभी मेरे ख्याल है इसका इतना, इसकी अभी जरूरत नहीं है, आप अपने थोड़ा सा फोकस लेते हैं हम तो अच्छा है।
ये देख लेते हैं कि इन चीजों को हम देख लेते हैं। अजाली का मिन्हू का जवाब कोई देगा, जल्दी से बताएं मुझे। अजाली का नाम जालिका मिन्हु। नाम जालिका मिन्हु। क्योंकि मिन्हू का जवाब मिन्हू से आता है सिंपली, हमने और किसी ऑप्शन को देखना ही नहीं है ये क्या से क्या बदल गए हैं, ये तो ऑल टुगेदर एकदम से हमें पता चल गया कि ये तो रॉन्ग है ना, ये तो हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे आपने देखने तो आप सोचेंगे कि जालिका को एकदम से हाजा में बदलने की कोई वजह है? नहीं, कोई वजह नहीं है। आपको पता चल जाएगा ये तो इन्होंने रॉन्ग ऑप्शन दिया। ऑब्वियसली हमने आपको 3 रॉन्ग ऑप्शन तो देनी है ना, एक राइट देनी है ना, तो वो तो आपका मतलब है कि आप उसको जल्दी से क्रॉस कर सकते हैं। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हाँ ये ठीक होगा। अच्छा, जिसको आप ठीक समझे ना उसको आप डबल चेक कर लिया करें कि ये ठीक है। अच्छा, इसको मिन्हू हो गया, जालिका की जगह जालिका आ गया, आ का जवाब ना अम से दे दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको अपनी जो राइट ऑप्शन है उसको अगेन एक मरतबा डबल चेक जरूर किया करें, ठीक है। बाज़ हो जाता है कि हम थोड़ा सा सिलेक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, अब अगर ऐसा सवाल आए, अभी इस सवाल का पहले स्पेसिफिक मुझे जवाब दें। अबदा फेल से मस्तर बनाइए, क्या मस्तर बनेगा? नंबर 4 इबादतुन। इबादतुन। अब यही सवाल आपसे पूछ ले हम कि खलका फेल से मस्तर बताइए, तो क्या बताएंगे? खालिकुन। मस्तर खल्क। खल्कुन, ठीक है ना। इसी तरह कोई भी नसरा से पूछ लें, जाला से पूछ लें, फतह से पूछ लें। कहने का मतलब ये है कि आपको पहला वाला कोई भी हम फेले माजी उठा के देते हैं, हम आपको कह दें कि ज़करा से एक आपको दे दिया, फेले माजी का कोई वर्ड दे दिया। फेले माजी का जो पहला वाला वर्ड होता है ना, वो पहली चाबी होती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसका तर्जुमा आपको याद होना चाहिए हमेशा। इस पहले लफ्ज का आपको तर्जुमा प्रॉपर आना चाहिए। ज़करा उसने याद किया, जब आपको ये पता चल गया तो आप पूरे टेबल में इसको इसी टेबल में से, सपोज ये एक एक्स्ट्रा बात आ गई, जरूरी है ये भी, कि इसी टेबल में से अब आपको कुछ भी हमने दे दिया, ज़करता दे दिया, ज़करतू दे दिया सपोज, तो आपको जब ज़करा का मतलब आ गया कि उसने याद किया, आपने इसका तर्जुमा याद रखना है। उसने याद किया जब ये है तो इसका मतलब है कि ज़करतू आ गया तो मैंने याद किया, ठीक है। अच्छा, अब बात हो रही थी इसकी। अगर आपको ज़करा हमने दिए हैं और हम कहें कि उसका मस्तर बताइए तो क्या बन जाएगा? ज़िक्र, ठीक है। इसका मतलब है कि हम आपको फेले माजी का कोई भी पहला वाला दे दें और आप उसका मसादिर आपने याद किए होंगे, ठीक है ना। आपको पता होगा कि जाला से जो है वो जालुन बनेगा, लेकिन फ़ाला से फ़ेलुन बनेगा, और ये मसादिर को याद करना, तो फतह से फतहुन बनेगा, और इस तरह से। तो ये एक सैम्पल क्वेश्चन है। हम आपको ये क्वेश्चन मे भी आपके क्विज में ये क्वेश्चन हो लेकिन अबदा से ना हो, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन हमारे लिए स्ट्रेंज था। आपको किसी भी 11 तो आपने सिर्फ वर्ड्स पढ़े हैं ना, तो 11 वर्ड्स में से हम आपको किसी का भी एक फेले मासी दे देंगे और आपसे इसका मस्तर पूछ लेंगे। हल इंदकुम किताबुन, इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन 2। नाम इंदना किताब। बिल्कुल, और ये बोला भी करें जिस तरह से बोल रही हैं, इसको पूरा बोला करें। जितना आप अपने प्रोनाउंस करेंगे ना उतना अच्छा होता है। कि आइंदा कुम का जवाब हमने देना आइंदा ना से। बाकी तो देखें तो इतनी सिंपल ऑप्शन थी कि किताबुन से किताबुन ही रह गया, और हल का जवाब हर जगह पे नाम से आ गया, तो इसमें तो कोई भी ट्रिक नहीं है। कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि कहीं भी हमने आपको किताबुन लिखा और कहीं भी हमने आपको किताबन लिख दिया और हम कहें जी ये भी सही हो सकता है वो भी हो सकता है। इस तरह की चीज़ों की अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस तरह की। अलबत्ता कोई हो भी तो आपने ये देखना है ना कि सवाल में ये है कि तुम्हारे पास किताब है। बहरहाल ये भी आपने रूल पढ़ा भी नहीं, तो वैसे मैं ये बता रही थी कि ऑप्शंस जो है ना बहुत सिंपल होंगी। आपने सिर्फ किसी एक कीवर्ड को देख के ही आपने उसका जवाब ढूंढ लेना है। हल अल कुरआन, अल कुरआन मआहा, ये इस तरह से होगा, लेकिन आप इसको वैसे देखें कि मआहा बेसिकली क्या है कि आपने हल के तो सारे जवाब नाम से दिए हुए, ठीक है ना, और मआहा का आपने कैसे जवाब ढूंढना है, क्या होगा? नाम अल कुरआन माहा ही आएगा, माहा। बिल्कुल, ये जो हा और हुआ और हु जो होते हैं, इनका जवाब जो गायब वाले होते हैं ना, उनका जवाब उसी से आते हैं। तो वैसे भी अगर कहीं पे भी आपको जवाब ढूंढने में मुश्किल हो तो उर्दू में ट्रांसलेट इसकी कर लिया करें ना कि क्या कुरान उस मुन्नस के पास है? तो जी हाँ, कुरान उस मुन्नस के पास है, उस औरत के पास है, ठीक है। एमलू सालिहात, इसका क्या जवाब होगा? अब हमने फेले अमर का जवाब देखना है कि हम कह रहे हैं एमल एमलू, पहले इसकी टीपीआई को भी ज़हन में रखिए, बल्कि जितने भी अभी तक हम कह रहे थे नामलु सालिहात, नामलू सालिहात, बिल्कुल ठीक है। देखिए कि जो अमर की जमा होती है उसको नामलू से जवाब देते हैं। अगर यहाँ पे मैं आपसे सवाल करूं ए मल मैं करूं आपसे, तो क्या जवाब होगा? ए मल सालिहात तो क्या जवाब होगा? आमलू
बिल्कुल, ये आपने बात ज़हन में रखनी है। और ए मल की ये टीपीआई है, ए मालू की ये है। अभी इससे पहले हमने जो सामे किया था वो ये था, मफ्तू किया था ये था, तो इनकी टीपीआई भी याद करा आपने साथ साथ क्वेश्चन में, ठीक है। हल अंतुम आमिलूना का जवाब क्या होगा? जल्दी से इसका जवाब आना चाहिए, जल्दी से। नाम नहनु आमिलून। नाम नाम नहनु आमिलून। देखें, बिल्कुल ठीक है, ये इसका जवाब है। और ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अमिलना मतलब है कि ये कहाँ से आ गया, नामल होना ये कहाँ से आ गया। हम तो पूछ रहे थे कि क्या तुम सब आमिल हो, अमल करने वाले हो, और ये भी ये इसमें ये फेल है। आमिल होना क्या है? फेल है। जी नहीं, ये इस्म फाइल है ना, उसकी जमा है। और कोई बताना चाहेगा? किसी ने कहा कि ये फेल इसम है। किसी ने कहा कि ये इस्म है, किसी ने कहा कि ये इस्म फाइल है और उसकी जमा है। अब बताएं, आमिलूना दोबारा से बताएं। इसमें कोई और फाइल ही है उस्तादा, इसमें इस्म फाइल है ये, जी। और कह रहे हैं कि इसकी जमा है, तो इसकी वाहिद क्या होगी फिर? आमिल, आमिलुन, आमिलुन। आमिलुन होगी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कंफ्यूजन इस तरह से हो सकती थी, और कुछ लोग हुए भी, उन्होंने इसको फेल समझा, ठीक है। वो इस तरह से हो सकती थी कि क्योंकि आपको ऑप्शंस में अब यहाँ पे अमिल ना दे दिया है, जबकि अमिलना एक फेल है, ये फेल मादी है, आपको पता है ये फेल मादी है। फिर नामलूना एक फेल मुदारे है। तो अमिला ही के टेबल में से अब आपको कहीं किसी ऑप्शन में फेल मादी नजर आ गया, कहीं पे मुदारे नजर आ गया, लेकिन आपको ढूंढना ये था कि क्या तुम सब आमिल हो, तो जवाब तो ये आएगा कि हाँ हम सब आमिल हैं। तो जवाब आपका ये है ना, ये आप लोगों ने जवाब दुरुस्त समझ लिया, लेकिन इसके पीछे थोड़ा सा जो लोग नहीं अभी बात कर रहे, इतना बोल नहीं रहे, तो मैं उनकी भी थोड़ी सी वजाहत मैं ज़रा ज़्यादा कर रही हूँ ताकि वो इस बात को अच्छा समझ लें। और यहाँ पे एक आमिलू का यानी फिर हम जो है ना एक और फेल मादी आ गया, इसका मतलब कि फेल की तो यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है ना। इसका तो ये तर्जुमा होना कि हाँ वो सब, उन सब ने अमल किया, तुम सब ने अमल किया, ये तो ये हो गया ना, ये हो गया मतलब नामलून, हम सब अमल कर रहे हैं। तो उर्दू से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी इसकी राइट ऑप्शन तक पहुंचने में, ठीक है। क्लियर हो रही है बातें? उस्कुरु रहमाना, उस्कुरु, अब ये फिर क्या है, ये क्या है? पहले तो ये बताएं कि ये क्या है, इसको क्या कहेंगे, ये इस लफ्ज को क्या कहेंगे? फेल अमर, जमा के लिए। फेले अमर है और जमा है, ठीक है ना। और इसकी टीपीआई होती है उस्कुर उस्कुरु, ठीक है ना। जब भी आप टीपीआई करें तो बेशक वाहिद जमा की दोनों की इकट्ठे कर लिया करें, उस्कुर उस्कुरु। इसका मतलब है कि हम अपने सामने लोगों को हुक्म दे रहे हैं कि आप रहमान को याद कीजिए, तो वो क्या जवाब दे रहे हैं? अब क्या जवाब आएगा, क्या दुरुस्त ऑप्शन है इसकी? सौफा नज़कुरु रहमान। बिल्कुल, इसलिए कि हम जमा के हवाले से बात करें, और सौफा तो आपको पता है कि लगता है। अब अगर इसकी जो दूसरी ऑप्शंस को भी एनालाइज करना हो तो अस्कुरु तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमने तो ये जमा से बात शुरू किया, तो हमें तो जवाब देने वाले जमा ही होंगे। यस्कुरु हो नहीं सकता, क्योंकि हम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है दोबारा से रिवीजन करने के लिए, कि यस्कुरु तो गायब के लिए हो रहा है ना, जबकि जब भी फेले अमर की बात होगी तो सामने हम किसी से मुखातिब हो रहे हैं। जब हम किसी से मुखातिब हो रहे हैं तो वो या तो अस्कुरु करके बात करेगा या वो नस्कुरु करके बात करेगा, यानी अफअलू नफअलू मतलब है कि मैं या हमसे ही जवाब देगा ना, ठीक है। और ये आ ना और या और ता आपको पता है कि ये मुदारे की निशानियां, और ये वाले जो दो मुदारे हैं ये हमारे फेले अमर के लिए इस्तेमाल होंगे, ये वाहिद के लिए होगा और ये जमा के लिए होगा। इफ्ताहुल बाबा, अब फिर हमारा फेले अमर आ गया, इफ्ताह इफ्ताहू, तो क्या जवाब होगा इसका? सौफा नफ्ताहुल बाबा। सौफा नफ्ताहुल बाबा। बिल्कुल ठीक है जी हाँ, वो सब जानते हैं उसको। अब ये भी बात आप सोचें कि एक तो है कि वो सब और एक जानने का। अब ये सारी बातें अगर इसकी ये ऑप्शंस ना भी लिखी हो ना, और जी हाँ, वैसे अगर ऑप्शन सपोज ना लिखी हो, आपको पता है कि जी हाँ के लिए आप नाम का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, वो सब जानते हैं। अब ये है कि पहले तो जानने के लिए आप इसके लिए अपना फेल आइडेंटिफाई करेंगे ना, कि ये कौन सा फेल इस्तेमाल हो रहा है। अगर नीचे ऑप्शंस ना हो, सपोज ये जानते के लिए मैं आपसे फेल पूछूं, तो आप मुझे कैसे फेल बताएंगे? यामलू। देखिए, जानना होता है इल्म होना किसी चीज का, मुझे इल्म है तो मैं उस चीज को जानती हूँ, ठीक है।
اس کا مطلب ہے کہ عین لام میم والا مجھے فعل ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کہ وہ جانتے ہیں پھر وہ بھی وہ سب ہے, تو یہ یہاں پہ میری ٹی پی آئی کام آتی کہ وہ جانتا ہے وہ یہ سب فعل مضارع سے. جی وہ سب جانتے ہیں, تو فعل مضارع سے ہوگا. تو کیا اس کا جواب کیا بنے گا پھر؟ یعلمون. یعلمون تو ہو گیا, لیکن اب یہ اس کو یعلمونہم نہم. آپشن نمبر بی 2. نہیں ہو سکتا. single. اور بتائیں, اور کوئی سوچیں. نعم یعلمونہ. فرسٹ ہے. نمبر 2. یہ دونوں آپشن آگے نمبر 2. ڈفرینٹ ہے. 1 ہے, نمبر 1. اچھا اب آپ دوبارہ سے دیکھیں. ہاں یہی تو بات ہے سوچنے کی. یہ یہ نہیں بھی نا, نہیں ہو سکتا, چلے تو یہ بھی نہیں ہو یعلم- سکتا. اب آپ بتائیں کہ اس میں سے کون سا ہوگا. آپشن 2 تو یعلمونہ. یہ عین لام میم ہے, اور یہ کون سا ہے؟ عین میم لام ہے. یہ تھوڑا سا ٹرکی ہوتا ہے. یہ تو ہوتا ہے جی عمل کرنا. اب عمل کرنے کی بات ہو رہی ہے, یہ جاننے کی بات ہو رہی ہے. یہ ہوتا ہے جاننا یا علم ہونا کسی چیز کے بارے میں. تو کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ جاننے کی بات ہو رہی ہے. اس جاننے کا کا. مطلب ہے کہ آپ کا جواب پھر یہ ہے. دیکھیں اب یہ دونوں جواب کتنے قریب قریب ہے نا, یعلمونہ اور یعملونہ بظاہر دیکھنے میں, لیکن آپ نے ان کے حروف مادہ کی ترتیب کا ہی سارا خیال رکھنا ہے. مادے کے تینوں حروف سیم ہے, صرف ترتیب بدل دی گئی ہے. لام پہلے لام اور میم ہے, پھر پہلے میم اور لام, اس طرح سے. ٹھیک ہے, یہ بات سب کو سمجھ میں آئی ہوئی ہے؟ ہاں جی. کلیئر ہے نا؟ تم سب کیا سنتے ہو؟ جب کسی فعل کے ساتھ کیا کا آتا ہے نا, تو اس کے لیے ہم نے ماضا پڑھا تھا. تم سب کیا سنتے ہو, یہ کیا جواب ہوگا اس کا؟ تم سب سنتے ہو. اب جب ہوگا نا سنتے ہو, اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے مضارع پہ پہنچنا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر تم سب کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ کوئی جمع کی جمع. بات ہے obviously. ٹھیک ہے نا. تم کا مطلب ہے کہ سامنے, تو ہمارا ٹی پی آئی اس طرح سے ٹی پی آئی پہلے اپنا بنا لیں, اور اس کا ریکوائرڈ ورڈ کیا بن جائے گا؟ ماضا ماذا تسمعون. تسمعون. یہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ تو ماضی ہے. یہ نہیں کہا کہ تم سب نے کیا سنا, یہ تو نہیں کہا نا. ٹھیک ہے نا. اور یہ ماضی ماضی سمعوا کا مطلب ہے کہ انہوں نے سنا, جبکہ یہ تو ریکوائرڈ ہی نہیں ہے. ہم تو تم سب کی بات کریں. اور اسی طرح یسمعون میں ان سب, وہ سب سنتے ہیں, تو وہ سب کی بات تو ہو نہیں رہی. ٹھیک ہے نا, وہ سب کی بات نہیں ہو رہی, تم سب کی بات ہو رہی ہے. تو اس طرح سے رائٹ آپشن پہ پہنچا جاتا ہے. حل ینصروا زیدن, اس طرح کا پہلے ہم نے ماضی میں کیا تھا, اب ہم مضارع میں کریں. تو ینصروا کا جواب کس سے آتا ہے؟ ینصرو سے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ نام ینصرو زیدن. بالکل. اب اس میں سے آڈ ون آؤٹ کا ذرا دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیسے. اب اس میں سے کون سا آپ کو مختلف پڑ رہا ہے؟ سسٹر وہ بتا دیں مجھے, نور افشاں طرح بتائیں, اس میں سے کون سا جی. آپ کو؟ مسلمون, صالحون, مسلمات. مسلمات. بالکل ٹھیک. کیسے؟ یہ بھی مذکر یہ کی جمع مؤنث ہے. یہ بھی مذکر لگ رہا ہے, یہ بھی مذکر یہ ہے. مؤنث جمع ہے. اچھا اس کے بارے میں بتائیں ذرا, یہ ویسے کیا ورڈ ہے؟ ضالین. کیا ہے؟ گمراہ. ضال کی جمع ضالین. ہاں جی بالکل, یہ بھی جمع مذکر ہے, اور اس کا واحد کیا ہے؟ اس سے اوپر والے سب مذکر جمع ہے, نیچے والا مؤنث جمع ہے. اچھا ضالین کے دو پاسبل واحد بتائیے, کون بتائے گا؟ دو پاسبل واحد بتائیے. ضالن, ضالین. ضالین اور ضالن لکھنا ہو تو کیسے ضالن. لکھیں گے؟ کیسے لکھیں گے لام اس کو؟ پر 2 جبر. لگا کر آپ ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں ایک ہی سوال میں سے کتنے سارے سوال ہم نکال لیتے ہیں اور اپنی پریکٹس کر لیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ کنفیوز نہیں ہونا کہ یہ تو یہ واو نون سے جمع ہے, یہ یا نون سے بن, نہیں. آپ نے جب آڈ ون آؤٹ نکالنا ہے تو آپ نے جمع کو جمع کنسیڈر کرنا ہے نا. آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ سارے اسم فعل حرف کے حوالے سے کوئی علیحدہ ہو سکتا ہے, تو آپ نے دیکھا یہ تو سارے ہی اسم ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ بھی اسم ہے, یہ بھی اسم ہے, یہ بھی اسم ہے. پھر آپ جائیں گے واحد مؤنث واحد جمع کے بیس پر آپ دیکھیں گے, تو آپ دیکھیں گے یہ تو سارے ہی جمع ہیں. اب تیسرا جو معیار ہے اس کے اوپر آپ اس کو پرکھیں گے, وہ تھا مذکر اور مؤنث کا. اس میں آپ دیکھیں گے کہ پہلے 3 آپ کو مذکر مل گئے, 1 آپ کو مؤنث مل گیا. تو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے چلنا ہے. ہاں جی یہ بہت کریٹیکل ہے. یہ میرے خیال میں آپ نے ریویژن کا لیسن دیا تھا اسائنمنٹ, اس میں بھی کچھ جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے مسٹیک کی تھی. جی آپ نے آرڈر جو ہے وہ فالو کرنا ہوتا ہے, پہلے آرڈر کو فالو. فعل حرف اور پھر واحد جمع, اور پھر آپ جائیں گے مذکر مؤنث پر. بالکل, کیونکہ
ऑर्डर को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे ना तो हो सकता है कि तीसरे मतलब आपको एक से ज्यादा दुरुस्त जवाब मिल जाएं, लेकिन हमने अपने गूगल फॉर्म में तो एक ही जवाब को फीड किया हुआ है, हमने उसी तरतीब के साथ जवाब जहां पे हमें जवाब मिल गया हमने वो जवाब डाला हुआ है। तो आपको हो सकता है कॉन्सेप्ट वाइज आपको आप कहें कि नहीं ये तो इस हवाले से भी अलग हो सकता था, इस तरह भी हो सकता था, पॉसिबिलिटीज होंगी, लेकिन आपने इसकी तरतीब को ही फॉलो करना है। ठीक है, दी की तरतीब में से फिर आप अलहदा करें। अब आप मुझे बताएं इसमें से कोई अलहदा हो सकती है? तो सारे छोटे छोटे से हरूफ हरूफ लग रहे हैं, कोई अलहदा हो सकता है इसमें से? बताइए। इसमें माँ इसम है, इसम है और इसको कहते हैं इसमें ज़र्फ। ठीक है ना, वैसे जरूरी नहीं है आप इस नाम को याद रखें, लेकिन थोड़ी पहचान के लिए ताकि आप मिक्स अप ना करें। ला तस्कुर की जमा बताएं। पहले वो बताएं कि ला तस्कुर है क्या, पहले तो मुझे इसका बताएं ना कि है क्या, इसको क्या कहते हैं ग्रामर में हम? ये नहीं का जुमला है, नहीं का, नहीं का ये लफ्ज। नहीं फेले अमर, तस्कुरु आएगा इसका जवाब। मत जिक्र करो। अच्छा अच्छा, किसी ने कहा फेले अमर, मुझे बताएं ये फेले अमर है? अमर नहीं है, नहीं है। ये फेले नहीं है। ठीक है ना, ये क्या है? फेले नहीं है, नहीं, फेले नहीं। ठीक है, तो इसका अमर क्या था? इसका अमर भी बताएं। उस्कुर, उस्कुर उस्कुरु। उस्कुरु मतलब इसका देखिए उस्कुर उस्कुरु, ला तस्कुर ला तस्कुरु। ठीक है, अच्छा अब आपको मैं अगर मैं कह रही हूँ किसी एक पर्सन को मैं कह रही हूँ ला तस्कुर, तो वो क्या जवाब देंगे? वो ला तस्कुरु अज़कुरू में देंगे, लेकिन शुरू में क्या कहेंगे? ना करो। वो ला की जगह लाई रहेगा। अच्छा ये सवाल जो है ना, इस सवाल में ये आपको सही लग रहा है? इसकी ऑप्शन सारी ठीक लग रही हैं? या तो इसके सवाल को चेंज करें या इसकी किसी ऑप्शन को चेंज करें, दोनों ऑप्शंस बन सकती हैं। कोई बताएगा? कोई थोड़ा सा अपना वो करें जरा ब्रेन। एक सेकंड वापस क्वेश्चन करें। अब आप मुझे बताएं कि क्या आपको इसका जवाब मिल रहा है? ये मेरा सवाल है। नहीं मिल रहा? ऑप्शन बी ला तस्कुरून इसकी जमा ला तस्कुरु आएगी ना, जमा ला तस्कुरु सी। सोच लें। नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? अच्छा चले नहीं बी मिल रहा तो होगा आप बताएं कि इसका होना क्या चाहिए था? अगर आप कह रहे आपने हैं कहा है ना कि उसका इसका जवाब ना हो तो लाज़कुरू। अच्छा आप बताइए, चले नहीं अगर है, ला या तो मुझे जवाब यहाँ से लाज़कुरू। बताएं। मैम जमा होगी तो लाज़कुरू। बी होगा ना, ला तस्कुरून। ये नो। फेल नहीं है। नहीं मैडम, ला तस्कुरु ही है। सी सी। आएगा ना। इसका ऑप्शन सी ही होगा। नोप 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 ओहो, नोप। सारे क्रॉस कर दी। हाँ देखिए ला तस्कुरु होगा। ला पहले इसकी सेंस पे कर जाएं, मत कर। पहले इसकी उर्दू पे जाएं। मैं कह रही हूँ ला तस्कुर मत कर, तो वो जवाब देगा मैं नहीं करता। पहले तो ये अच्छा, देखें ना, वो जवाब इसका देगा मैं नहीं जवाब करता। नहीं हैं? ये इसकी मैं जमा है समझी ना, वो तो मेरे ख्याल में मैडम जवाब। जमा बतानी है ना, जमा में जी तो जी ला तस्कुरु नहीं ही नहीं, आपने आएगा। क्वेश्चन बदल दिया है ना। अच्छा अच्छा ए ए वो ला दूसरा तस्कुर जमा जो है वो है। ला तस्कुर है। ठीक है ठीक है, अच्छा नहीं इसका मैं भी पहले कहूँगा। अच्छा इसकी जमा हाँ बतानी है, आंसर नहीं देना है इसका। ठीक है बिल्कुल ठीक है। अब आपने जमा तो ये बता दी, लेकिन अगर इसका आंसर देना होता, सपोज इसका जवाब होता, चलें ये बताएं, ला लाज़कुरू। नस्कुरु। तो फिर इसका जवाब होता नहीं। अभी भी सोच लें, जिन्होंने कहा है ना ला नस्कुरु वो सोच लें। लाज़कुरू। अज़कुर में है। नस्कुरु नहीं, अज़कुर अज़कुर, आएगा। ला मैं ला अज़कुर नहीं करता। अज़कुर। अस्कुर, बिल्कुल ठीक ला है। इस तरह तो ये सारा का सारा जो कुछ भी हम इस वक्त कर रहे हैं, इसी में से सवालात जो है ना, यही सवालात आपके क्विज में आ रहे हैं, फाइनल क्विज में, तो वो आपके पूरे नंबर आने चाहिए। ठीक है ना, तो क्योंकि इसका आंसर सी है। जी वैसे आंसर अगर जमा ढूंढनी है, जमा के हवाले से ये आंसर है। ठीक है ना, उस्कुर उस्कुरु ला तस्कुरु। ठीक है, ये वो है फेले नहीं की जमा। लेकिन मैंने एक और सवाल इसी में से बना लिया था कि इसका जवाब दिया जाए तो इसका जवाब ये होगा। ठीक है, ये भी तो सवाल पूछ सकते हैं ना कि ला तस्कुर का जवाब क्या होगा, तो ला अस्कुरु उसका जवाब होगा। ज़कर यस्कुरु का टेबल ले लेंगे ना, यस्कुरु यस्कुरुना तस्कुरु अस्कुरु, तो आप इस तरह से इसका जवाब ढूंढ लेंगे। यदखुलूना फी दीनिल्लाह में कौन सा लफ्ज फेल है? देखिए ना, अब इसमें जो ये कितने कितने वर्ड्स हैं, यदखुलूना है, फी है, दीन है और अल्लाह है। पूछा गया है कि इसमें से फेल कौन सा है? यदखुलूना दाखिल हो रहे हैं। यदखुलूना।
और ये क्या है, ये क्या है, हर्फ हाँ ये हर्फ है, ये क्या है, इसम है, इसम ये क्या है, है? अल्लाह भी इसम है। इसम है। इसम बिल्कुल ठीक। सच्ची तौबा के लिए शर्त है कि क्या क्या किया जाए, गुनाह का इतराफ किया जाए, गुनाह पर शर्मिंदगी महसूस की जाए, दोबारा गुनाह न करने का पक्का इरादा किया सब जाए, या दुरुस्त है। सब दुरुस्त। सब दुरुस्त सब दुरुस्त है। डी सब दुरुस्त है। गौसिकीन का तर्जुमा क्या है? अंधेरा, अंधेरा। श्योर? अंधेर। शर्त तो जी, नहीं है ना इसका तो- तर्जुमा? नहीं जब अंधेरा छा जाए तो नहीं है ना इसका तर्जुमा? छाने के लिए कौन सा वर्ड पड़ा था, कोई मुझे बताएगा? छाने के लिए कौन सा वर्ड पड़ा था? ईजा वक़ब, वक़ब। वक़ब, वक़ब वक़ब। वक़ाबा, ये भी एक फेल है। वक़ाबा, वक़ाबा भी ऐसे ही है जिस तरह दरबा है, कोई भी फेल है, ठीक है ना, ये फेल माजी है। वक़ाबा यक़िबु। गिरा के लिए कौन सा लफ्ज पड़ा था? उक़द। 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 तो देखें, या आपसे वो सवाल पूछ लेंगे, या आपसे ये पूछ लेंगे, या ये पूछ लेंगे कुछ है, तो सवाल तो सारे ओपन है, पर्चा पूरा आउट है आप लोगों का, ठीक है? तो इसलिए आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। हल इंदकुम किताब, अब आपने इसके जवाब देने हैं। हल इंदकुम किताब या किताबुन कह लें, तो इसका क्या जवाब होगा? नाम नाम इंदना इंदना, किताबुन। नाम इंदना किताबुन। बिल्कुल नाम ठीक है। इंदना किताब। हल अंतुम जाइलूना, इसका जवाब क्या होगा? नाम नहनु जाइलून। नहनु जाइलून, बिल्कुल ठीक है। दीनु का व किताबी की उर्दू क्या होगी? दीनु का तेरा किताब, दीन और मेरी किताब। तेरा दीन और मेरी किताब। श्योर? मेरी देख लें, कोई और ऑप्शन तो नहीं बनती? कोई और नहीं, यही सिस्टर है। ब्रदर कोई और बताना चाहें? सही जवाब बी है? उसका दीन और सही जवाब। नहीं, किसी ने कहा उसका दीन। देख लें, थोड़ा सोचें। उसका दीन और मेरी किताब। नहीं बी है तेरा तो दीन। फिर वो अच्छा, होता आप ना। जो सिस्टर कह रही है ना उसका दीन, अब आप मुझे उसका दीन की अरबी बताएं। टेबल वो टेबल जहन में लेकर आए, दीनुहू का टेबल लाएं। दीनुहू के टेबल में हम कैसे बोलते थे? दीनुहू, उसका दीन, दीनु हुम, उन सब का दीन। आपने कहा है कि उसका दीन होगा, तो उसका दीन तब होता है ना जब यहाँ पे इस जगह पे आपको हमने दीनुहू दिया होता, ठीक है? तो हमने आपको दीनुहू तो नहीं दिया हुआ ना, ठीक है सिस्टर? समझ आगे बात ये वाली क्लियर होगी? जी क्लियर होगी। हाँ, ये आपने ना का को ढूंढ रहे हैं, तो का जो है ना वो तेरे लिए होता है, दीनू का। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप दीनू हु का टेबल फौरन अपना कर लेना। दीनू हु, दीनू हुम, दीनू का दीनी, दीनू कुम, दीनू ना, ठीक है ना, इस तरह से। फिर इसी तरह से किताब का टेबल कर लें, किताबू हु, किताबू हुम, किताबों का किताबी, किताबू कुम, किताबू ना। तो जिस जगह पे आपको अपना रिक्वायर्ड वर्ड मिल गया, किताबी आपको मिल गया ना, तो किताबी का मतलब होता है कि मेरी किताब, ठीक है? तो वहां से आप अपना दुरुस्त जवाब पहचान लेंगे। अब आप इसमें से फिर ऑड वन आउट करें, कौन सा होगा? मुस्लिम। वेरी सिंपल, मुस्लिमुन। इतना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं देना। अच्छा, इसमें से बताएं कौन सा ऑड वन आउट है? हिया सालिहतुन। अंत सालिह। समझ में आ रहा होगा आई होप इंशाल्लाह सबको। अच्छा, इनको क्या करना है? इनको ये मेरे पास थोड़ा सा ब्लर से नजर आ रहा है। अच्छा, वाहिद की जमा, ठीक है ना? ये क्या वर्ड लिखा हुआ है? जी मैं बता दूं, वाहिद की जमा और जमा की वाहिद बताएं जी। ये क्या है? बिका, ये बिका, इसकी बिना। जमा बिकुम, सिंपल। और इंदा का, इंदाकुम, लकुम माहुम की वाहिद, माहू। माहू। ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं देना। अलैया, इसकी जमा। अलैना, अलैना। ये बहुत बेबी क्वेश्चन है, ठीक है? ये जस्ट आपको पीछे से थोड़ा सा रिमाइंडर देने के लिए। अच्छा, कौन सी सूरत थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई? सूरतुल नसर के बारे में, आखिरी मुकम्मल सूरत। इसके बारे में क्या कह रहे हैं? आखिरी मुकम्मल सूरत थी, पहली तो हो नहीं सकती क्योंकि ये पता है मक्का के मौके पे नाजिल हुई थी ना, याद है आप लोगों को? ठीक है ना? दरमियानी वाली बात भी कोई नहीं हुई थी, पहली वाली बात भी कोई नहीं हुई थी, और पहली मुकम्मल की बात भी नहीं हुई थी। आखिरी मुकम्मल सूरत, यानी हमने पढ़ा था कि इसके बाद मुतफरिक आयात नाजिल हुई थी, लेकिन एक पूरी सूरह की फॉर्म में ये सूरत थी, सूरतुल नसर। सूरतुल इखलास को अपनी कौन सी नमाजों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी नमाजों की सुन्नतों में पढ़ा करते थे? फजर और मगरिब। फजर और मगरिब। सूरतुल काफिरून और सूरतुल इखलास। फजर और मगरिब। फजर और मगरिब। सूरतुल काफिरून का खुलासा कौन बताएगा जल्दी से? इसमें से पहचाने कुफार के साथ दीन में मुजाहिदत मुसालमत की कोई गुंजाइश नहीं। ये वाला खुलासा था, ठीक है ना? सी।
قرآن کے نزول کا کیا مقصد تھا؟ یاد ہے وہ جو کیا پڑھا تھا ہم نے، کتاب انزلناہ الیکا غور و مبارک فکر کرنا اور نصیحت حاصل کرنا، ڈی غور و فکر کرنا اور نصیحت حاصل کرنا. جی بالکل بالکل، نہیں آپ نے حفظ کرنے کو کر دیا. سوری اور نصیحت حاصل کرنا، غور و فکر کرنا اور نصیحت حاصل کرنا، بالکل صحیح. اس کے بعد آپ نے درست جواب سے ملا. ہاں اس کو دیکھیں نا، ملتے جلتے الفاظ ہوتے ہیں. ملک، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، یہ کیا تھا؟ لوگوں کے بادشاہ نا، قل اعوذ برب الناس مالک الناس، ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ کیا تھا؟ مالک یوم الدین، یہ کون سا تھا؟ اس کا مالک آئے گا، مالک مالک مالک. اور ملک اور فرشتہ، یہ ملک ملک یہ کون سا تھا؟ فرشتہ. اور یہ کس کا بیبی بول رہا تھا؟ چھوٹا سا اینجل. اس کو بھی ساتھ ساتھ سارا QC بند کروا دیں. ہاں جی کروا رہی ہوں. الخناس کا مفہوم بتائیے. الخناس چھپ چھپ کر حملہ کرنے والا. اچھا، اب مجھے بتائیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ وسوسہ ڈالنے والے کی عربی بتائیں تو پھر آپ کیا بتائیں گے؟ وسواس، وسواس، الوسواس، الوسواس، ٹھیک ہے. اور شر پہ لانے والا تو ہم نے کچھ ایسا پڑھا نہیں تھا ایسا، اور برائی کرنے والا وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یہ سورۃ الناس کے حوالے سے آپ سے دوسرا کوشچن بھی پوچھ سکتے ہیں کہ وسوسہ ڈالنے والا مطلب اس کا. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا، ایک لفظ الوسواس استعمال ہوا تھا جو کہ اسم ہے ال کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور ایک لفظ یوسوس یوز ہوا تھا جس کا مطلب ہے کہ وہ وسوسہ مطلب ڈالتا ہے، وہ فعل استعمال ہوا. اب اس میں سے پھر کچھ الگ کریں، کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ اس میں سے کون الگ ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ہوا، اننا حرف ہے. سوچ لیں کسی نے کہہ دیا ہوا، کسی نے کہہ دیا جی سوچ لیا، کیونکہ ہوا جو ہے ہے اننا جو ہے وہ حرف ہے. اننا حرف ہے اور باقی جو ہے وہ تینوں آپ کے اسما ہیں. بالکل ٹھیک. فہم لا یسمعون کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فا کا ترجمہ کر لیں، ہم کا کر لیں، الگ لگتا ہے، لا کا کر لیں. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ سمیہ کے ٹیبل میں آپ کا جو یسمعون اس جگہ پہ ورڈ آتا ہے، یہ وہ ورڈ ہے. تو کیا ترجمہ بنے گا اس کا؟ بس وہ سب نہیں سنتے، نہیں سنتے، بی ہوگا. ٹھیک ہے، تو مارتا ہے اور وہ جانتا ہے. اس میں سمپلی یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے مارتا کے لیے دربا کا فعل اپنے پاس رکھ لیا، اور جاننے کے لیے آپ نے جو ہے وہ جاننے کا کیا ہوتا ہے؟ علیما کا آپ نے رکھنا ہے. یاد رکھنا ہے آپ نے کہ جاننا علم سے. اب یہاں پہ ایک عملہ کا آپ کو فعل نظر آ رہا ہے، ایک آپ کو علم والا فعل نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے یہ تینوں علم والے فعل ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ تو عمل کرنے والا فعل ہے نا، یہ تو یہاں پہ اپلائی نہیں ہو رہا. بالکل ٹھیک ہے نا. اچھا، اب آپ بتائیں اس میں سے کون سا صحیح جواب ہوگا؟ ڈی آئے گا میڈم. انت تضرب وهو يعلم. آپشن ڈی. آپشن کون سا؟ دوبارہ بتائیں کون سا آپشن؟ ڈی انت تضرب وهو يعلم. ڈی کہہ رہے ہیں سب لوگ، بی تو نہیں نا کوئی کہہ رہا؟ نہیں، ڈی فور ڈاگ. اچھا جی، اس کا بتائیں. آپ نے کیا تو آپ نے کیا کا کیا ہوگا؟ فعلتا و فعلتو. بالکل کیا و فعلت. تو اس کی ٹپیا کیا ہے؟ فعلتا و فعلتو. ٹھیک ہے نا، فعلتا و فعلتو ٹپیا بھی ساتھ. میں نے جانا اور میں نے عمل کیا، تو دونوں میں نے ہے. اچھا، جانا اور عمل کیا، اس طرح بھی دیکھا کریں نا، یہ دونوں ماضی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، ماضی کی بات ہو رہی ہے ایک بات. دونوں میں نے کی بات ہوتی ہے، اور میں نے والا جو ہوتا ہے نا وہ یہ والا ہوتا ہے. علمت و عملت. میں نے جانا بی بالکل آئے گا. ہاں، یہی اس میں تھوڑا سا ہوتا ہے نا کہ آپ نے اب یہ بھی اس سے مل رہا ہے، یہ بھی اس سے مل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس میں سیکوینس چینج ہوگا. تو یہ پہلا والا علم والا ہے، علم اور جاننا جو ہے وہ علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. دوسرا والا عمل والا ہے، اور عمل جو ہے وہ عاملہ کا ٹیبل ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہوگا بلکہ یہ ہوگا. ٹھیک ہے. سوری ایک منٹ، یہ واقعی آپ نے جو علم اور عمل کا جو بتایا ہے نا، اس میں واقعی میں بھی بہت کنفیوز ہو رہی تھی. اب مجھے سمجھ آ گئی ہے.
बस इस तरह से ना आप इनके हरूफ मादा को अलग अलग जरा पहचान लिया करें और शुरू में जरा लिख लिया करें। लिखना अच्छा होता है, रफ नोटबुक पे लिख लिया करें। ड्यूरिंग द क्विज भी आप अपने रफ पेपर के ऊपर लिख सकते हैं ना अपने इसको क्लियर करने के लिए। और हमें पता है कि इल्म का मतलब होता है इल्म हासिल करना, किसी चीज को जानना। तो जहाँ पे जानना वगैरह आएगा वहाँ पे ये वाला फेल इस्तेमाल होगा। अमल का मतलब होता है कोई काम करना, अमल करना, तो वहाँ पे ये वाला फेल इस्तेमाल होगा। तो आपने इस तरह से इसको पहचानना है। उसके बाद इसमें से भी आप देख सकते हैं कि किसी को हमने अलग करना हो तो हम कैसे अलग करेंगे। सारे ही फेल हैं, ठीक है ना, ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है। अच्छा, अब दूसरे, हाँ जी, अब दूसरे क्राइटेरिया पे जाएंगे तो हमें ये जमा मिल जाएगा, बाकी ये सारे ही वाहिद हैं, ये तीनों वाहिद हैं। इसका मतलब हमें हमारा जवाब मिल गया। दराबा से हमने इसम फाइल बनाना है। अब ये वही वाला सवाल है ना जैसे अभी पहले भी एक आया था कि पता नहीं हमने पूछा था समिया से या किसी से पूछा था। तो अब इसी तरह से दराबा से इसम फाइल बनाना है तो क्या बनेगा, ज़ारिबुन। और किसी भी फेल से इसम फाइल बनाना हो तो इसी पैटर्न पे ज़ाकिरुन, खालिकुन, ठीक है ना। और ये इसकी टीपीआई क्या थी, फातिहुन, जाइलुन, फाइलुन, ठीक है। इस तरह से आपने टीपीआई करनी है। और अगर हम आपसे पूछें, अगर आपका सवाल यहाँ पे ये हो कि दराबा से इसम मफऊल बनाएं, क्या बनाएं, इसम मफऊल, मजरूब। इसी तरह हम आपको कह देंगे कि मस्कूरुन बना लें, माबूदुन बना लें, मसनूउन बना लें, ठीक है ना, मामूलुन बना लें और मालूमुन बना लें। अगेन ये वाले जो दोनों हैं इनका आपने ध्यान रखना है। मालूम बनेगा इल्म वाले फेल से, ऐन लाम मीम वाले फेल से, और मामूल बनेगा अमल वाले फेल से, ऐन मीम लाम वाले फेल से, ठीक है। अच्छा, अब इस सवाल पूछने के लिए ये भी हो सकता है कि आपको मस्तर दे दिया जाए। ये मस्तर है, ये क्या है, मस्तर। आपसे पूछे कि अमल उनसे पहले मादी बताएं तो क्या मादी होगा इसका, आमिला। आमिला। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि इन दोनों में से कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है आपको। अमला आएगा। अब देखें, अब कंफ्यूजन हो गई ना। अब एक सिस्टर को लगा कि अमला आएगा, पहले किसी ने बोला कि अमीला आएगा। अच्छा, दुरुस्त जवाब अमीला है। अच्छा, ये याद कैसे रहेगा, इस तरह याद रहेगा कि आपने ये याद रखना है कि बाप समिया में आता है। ये कैसे, ये प्रैक्टिस से आपने याद रखना है। अमला जो है ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि समिया में, समिया के पैटर्न में सेकंड नंबर पे जेर आती है। तो अमीला के पैटर्न में आपको जो जेर नजर आ रही है आपको कंफर्म कर रही है कि आपने सही बात चुना है, ये समिया से आएगा। अब देखिए हमने आपसे सवाल पूछे, मस्तर दे के आपसे उसका हमने फेल पूछा है, ठीक है ना। अगर आपको सिर्फ हमने अमीला यहाँ पे दे देते, सपोज आपसे सवाल ये होता कि अमीला से मस्तर बनाए, फिर तो आप बना ही लेते ना कि अमालून इसका मस्तर है। फिर भी गलती नहीं करनी, मसलन हो सकता है आप इसका मस्तर बनाने लगे तो आप कह दें अमीलुन, अमीलुन नहीं, अमीलुन नहीं होगा। उर्दू में मसादिर जो आमतौर पर उर्दू में बोले जाते हैं तो हम अमल करना कहते हैं ना, अमील करना तो नहीं कहते, अमल करना कहते हैं। इसका मतलब है कि ये आप क्वेश्चंस को दो एक क्वेश्चन में से दो तीन क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। तो बहरहाल इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है सी, यानी कि अमलुन से जो फेले मादी है वो आमिला है, नॉट अमला। क्लियर हो गई ये बात सबको? जी जी, हाँ जी। जिसको जाना गया, ठीक है ना। अब आपने देखने के जानने के लिए तो इल्म है, वैसे तो इसमें कोई मेरा ख्याल है कंफ्यूजिंग चीज नहीं आई, लेकिन इल्म है, सारे ही इल्म वाले, ठीक है ना। इसमें से आप बताएं पहले कि आपका जवाब कौन सा है। जिसको मालूम। मालूम। मालूम, मालूम। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए एक और ऑप्शन दे दी जाए, मामूल, तो आपने कैसे पहचानना है कि मामूल में तो आइन मीम लाम, ये तो अमल वाला है। अमल का मतलब होता है अमल करना, तो हमने तो जाना, हमसे तो जाना पूछा गया, ठीक है। क्लियर? हुआ फतह को मोनस में तब्दील करें, वो सिस्टर बताएं, नूर अफशा, जिनको मोनस मुश्किल लगती है, बताएं कि हुआ फतह को कैसे आपने मोनस बनाना। ये होगी मोनस, हुआ फतह, बताना है। हुआ फतहत, हुआ फतहत, हुआ फतहत, हिया फतह, नहीं मैडम, हिया फतह। डी, ऑप्शन डी, बी, हिया फतह। सारे एग्री करते हैं? जी, हिया फतहत। हिया फतह। ऑप्शन नंबर डी। व्हाट अबाउट दिस, ये बताएं, ये तो नहीं है पॉसिबिलिटी? नहीं हो ही नहीं सकता।
ये नहीं हो सकती। मोनस के लिए हिया तो आता क्या है क्या इस सेंटेंस में क्या क्या मिस्टेक्स हैं? तो मिस्टेक बताएगा इस सेंटेंस में क्या गलती है वैसे? इसमें हुआ नहीं आएगा, हिया आएगा। कि अगर इस सेंटेंस को वैसे मैं कहूँ कि इस सेंटेंस को दुरुस्त करें तो ये इसका दुरुस्त जवाब, दुरुस्त जो इसका है फॉर्मेशन वो है हिया फातिहातुन। हिया फातिहातुन। जब हमने किसी मोनस के बारे में बात करनी है तो हम उसको हुआ नहीं कह सकते, हम कहेंगे हिया फातिहातुन। या इसकी एक और करेक्ट फॉर्म भी होगी। क्या फॉर्म होगी इसकी करेक्ट फॉर्म? हुआ फातिहुन। फातिहुन, बिल्कुल। ये आपने जो है ना सारी इन चीजों को ही आपने ऑब्जर्व करना है, इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, हल अंता जाकिर, उनका जवाब क्या बनता है? हल अंता। जब मैं कह रही हूँ अंता तो मुझे जवाब देगा अना। पहले तो हमें ये कंफर्म अना करना है, जाकिर। ठीक है ना? तो क्या जवाब होगा? अना जाकिर। अना जाकिर। ये तो नहीं होगा ना? नहीं, ये क्यों नहीं होगा? इसलिए कि अना वाहिद है ना, अना वाहिद है। तो अना के साथ ये चीज जमा जो है ना ये इसके साथ नहीं आ सकती, ठीक है? तशहुद में अल्लाह ताला से मुतालिक कौन सी 3 इबादत का जिक्र है? क्या हम नमाज, रोजा, हज की बात करते हैं या फिर हम कौली बदनी माली इबादत। कोली बदनी माली भी। बिल्कुल। सूरतुल इखलास के एतबार से अल्लाह ताला किन 4 चीजों में यकता है? जात, मामलात, इख्तियारात, हकूक, इख्तियार। ज़ात, सिफात, हुकूक, इख्तियार। तो ईसाइयों का कौन सा अकीदा है जिसको रद्द करती है सूरह इखलास की कौन सी आयत? के वो जो अकीदा था जो कोई सूरतुल इखलास, जी बिल्कुल ठीक है, जो कोई सूरतुल इखलास को तवज्जो से पढ़ेगा उसका क्या ईमान क्या होता है उसका? अकीदा खालिस हो जाएगा। खालिस हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सूरतुल नास में कौन सी आयत है जो हमें सोसाइटी के ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे अनासिर के बारे में बताती है जो कि हमें अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल कर देते हैं और इस्लाम के बारे में शक करते हैं? मिनल जिन्नति वन्नास। पता नहीं कि उसमें ये बताया गया कि ये जो वसवसा डालने वाले शर वाले जो अनासिर हैं ये नॉट नेसेसरीली सिर्फ शैतान नहीं होगा, बल्कि ये है कि ये जिन्नों में से भी हो सकते हैं और इंसानों में से भी हो सकते हैं, ठीक है ना? इस तरह से ये सूरतुल नास के एंड में हमने पढ़ा। अच्छा, अगर हमने कहना और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया तो आप देखें ना, और वलकद यस्सरना। बिल्कुल ठीक है। अब देखें ना, अगर कोई थोड़ा सा इसके साथ कंफ्यूज होने की थोड़ा सा चांस हो तो आप देखें कि वहां पे वलाकद है, यहाँ पे वाकद है, ठीक है? और जबकि हमें अलबत्ता के लिए भी तो वर्ड ढूंढना है ना, तो अलबत्ता के लिए ला होता है, ला प्लस कद। ये भी ग्रुप में क्वेश्चन भी आ रहा था, ठीक है ना, लकद, सही है। अच्छा, और ये ऑप्शन तो इसलिए नहीं हो सकती कि कुरान की यहाँ पे इधर कुरान की बात नहीं हो रही, इधर बात हो रही हो और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया, ठीक है ना? अभी कुरान की बात नहीं हो रही, तो इसलिए ये वाली ऑप्शन हमारी ठीक नहीं है, ठीक है? कलमी व किताबू का, बिल्कुल वो कलम और आपकी किताब। बिल्कुल ठीक। दीनू व किताबू का, का दीन और उस औरत की किताब। उस मर्द का दीन और उस औरत की किताब। ऑप्शन बी। बल्लिगु अन्नी वलाउ आया, इसका क्या तर्जुमा था? पहुंचा दो मेरी तरफ से वैसे एक आयत ही। ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि अन्नी है तो ठीक है ना, मेरे लिए नहीं हो सकता क्योंकि लिए की बात नहीं हो रही, ल का वर्ड नहीं, आन का वर्ड है, ठीक है ना, मेरी तरफ से, ठीक है ना? और अगर ये है, अगर हम ये चूज कर लेते तो इसमें ये वाली जो चीज है ना, अगरचे थोड़ा सा, तो ये अप्लाई नहीं हो रही, बात ये हो रही है अगरचे वो एक आयत ही हो, ठीक है ना? इस तरह से आपने थोड़ा सा देखना। फिर अगर आपको इससे इनको इस्म फेल हर्फ के हवाले से इन चीजों को देखना हो तो इनके ऊपर एक नजर डालें। कोई सवाल, कोई इसमें मुश्किल पेश आती है आपको? कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें? नहीं, जी। फिर जब स्लाइड्स आपसे शेयर होंगे ना तो आप इसको जूम करके देख सकते हैं, और जब आपके पास ये फिर मैं कैप्चर किया हुआ है हमने, स्क्रीनशॉट है इसलिए यहाँ क्लियर नहीं है, लेकिन एक्चुअल जो क्विज आएगा उसमें सही क्लियर होगा। उसमें क्लियर होगा, ये थोड़ा सा पिक्चर वहां से इमेज उठाना पड़ता है, मगर आसान है बहुत ज्यादा। लफी खुस्म में कितने टुकड़े हैं अल्फाज के? अगर हम देखें तो
क्या ये दो टुकड़े हैं लफी खुस्र, या ये एक ही वर्ड है, या फिर ये यूं है लफ्ज है? ये जवाब, अच्छा किसी ने कहा नंबर ये, सी। वो आ ही नहीं रहा। अच्छा, क्या ख्याल है, क्या फाइनल हुआ फिर? 3 टुकड़े हैं, टुकड़े। ई और किसी ने कहा था ए, तो वो उनको क्लियर हो गई बात, क्योंकि हम लफी को भी 2 टुकड़ों में करेंगे ना, ल अलग से एक वर्ड, ला जो होता है ना वो ताकीद के लिए होता है, ला फॉर एम्फेसिस, ठीक है ना। ये यहाँ पे जब ये हर्फ के साथ इस तरीके से आएगा ना, ला प्लस फी, ठीक है, और फिर खुस्र अलग से, तो ये इसका जवाब सी होगा, ठीक है। उसके बाद ये तो सिंपल है कि आपने इसका देखना है कि उसने याद किया, उसकी क्या अरबिक होगी, ज़ाकरा, ज़ाकरा, उन्होंने याद किया, ज़करू, बिल्कुल। फिर समिया के मादे से आप एक ने सुना, अब आपकी बात हो रही है ना, आप एक ने सुना, ठीक है ना, आपसे मतलब आप एक का मतलब है तुमने सुना, समेता, ठीक है ना, और मैंने सुना, समेतु, हाँ बस ये आपने ता और तू को देखना है, समेता समेतु, समेता समेतु, इसकी टीपीआई आपको कंफर्म होनी चाहिए। सूरत इखलास का मौजूद क्या है? तौहीद, ए, तौहीद। इसी तरह से फिर अगर हम ऐसे करें, कोई इसम फाइल हमने तलाश करना है, तो इसम फाइल हमें नजर आ रहा है यहाँ पे, फाते, फाते नजर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसमें फिर इसम मफूल हो तो क्या होगा? मफ्तू, मस्तर हो तो क्या होगा? फत। अच्छा, अब अगर ये सवाल आपको हम फतह से ना दें, ये सवाल हम आपको नसरा से दे दें, किसी भी टेबल में से दे दें, तो आप कर लेंगे। आप इसम फाइल नासिर बना लेंगे, इसम मफूल का यानी नासिरुन, मंसूरुन और नसरुन आप इसको मस्तर बना लेंगे। फिर आबिदुन, माबूदुन, अब्दुन, नहीं सॉरी इबादतुन, ठीक है ना। अब देखिए ना, उसी पैटर्न पे ये ना हो कि हमने उसका नसरुन बनाया तो हम इसका अब्द बनाया, हमने इसका इबादा बनाना है, तो हमें मस्तर में थोड़ी सी हमें चेंजेस मिलेंगी, उसको हमने थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। हो सकता है ना, अब आपको मैंने जो आबिद वाला, सपोज मैंने आपको अबादा से पूछ लिया, तो अब मैं यहाँ पे जब इसकी रॉन्ग ऑप्शंस लिखूं, यानी ऑप्शंस दूं, तो एक मैं रॉन्ग ऑप्शन डाल दूं, एक मैं आपको डाल दूं इबादतुन मस्तर के हवाले से, और एक यहाँ पे आ जाए अब्दुन, जैसे कि मैंने अभी जल्दी में बोल दिया अब्दुन, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने मस्तर दुरुस्त वाला इंतखाब करना है, आपको ये याद होना चाहिए कि मस्तर ठीक है ना। हाँ, फिर इसको आप नहीं चूज करेंगे, क्योंकि 1-2 ऑप्शंस एक्स्ट्रा भी होती है जो रॉन्ग होती है, वो थोड़ा सा सोचने के लिए दी जाती है। फिर अगर आपको कहें इसका मुज़क्कर मुंतखब करें, हल तजअलू, पहले तो मुझे इसकी टीपीआई आप लोग कोई मुझे बताए, हिया तजअलू, तो ये कौन सा था? जअला का टेबल था, जअला और यजअलू, यजअलू यजअलूना तजअलू अजअलू तजअलूना नजअलू, और फिर तजअलू, ये वो वाला तजअलू है, हिया तजअलू, हिया तो हुआ यजअलू इसका मुज़क्कर होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है, सबको क्लियर है ये बात? शुक्र है मुझे तो शुक्र है, मुझे तो आ रही है, और सबको आ रही है। वो बेसिकली मेरी वीक नहीं रही। अमीलत, अमीलत का मुज़क्कर क्या होगा? अमीला का टेबल हम देखते हैं ना, अमीला, अमीलू, अमीलता, अमीलतु, अमीलतुम, अमीलत, हाँ जी बिल्कुल। देखिए इसका मुज़क्कर जो है ना ये होगा, ये इसका मुज़क्कर, मतलब आपने अगर कहीं किसी जगह पे आपको सपोज ये अमीला है, लेकिन अगर किसी जगह पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सपोज लिखा हुआ है हिया अमीला, तो इवन आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना, कि जब इसके साथ हिया नहीं है, लिखा हुआ नहीं है ना हिया, तो इसके साथ भी हिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको एक और ऑप्शन बता रही हूँ ना, मे बी अगर हिया यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी हिया होगा। क्लियर होगी ये बात सबको? हाँ जी। सल्ली रब्बी का मानी क्या होगा? सल्ली ली, अपने नमाज पढ़ अपने रब के लिए। ठीक है। दरूद भेज क्यों नहीं होगा, पहले मुझे ये बताएं, दरूद भेजने के लिए क्या हमने पढ़ा था? इसका जवाब है तसल्ली का मतलब है नमाज,
वो हमने सल्ले अला पढ़ा था, याद है कि जब अला होगा तो दुरूद भेजने का मानी होगा, ठीक है ना, और जब ली होगा तो नमाज पढ़ने का मानी होगा। ये सूरतुल कौसर में से हमने पढ़ा था ना, सूरतुल कौसर में से हमने पढ़ा था फसल्ली रब्बी का वन है, ये वो वाला है। ये हमने उस टॉपिक में कवर किया था जिसमें हमने देखा था कि जब हरूफ जारा फेल के बाद चेंज हो रहा है, यहाँ पे अला है, ये भी हरूफ जार है ना, और यहाँ पे ली है, ली भी एक हरूफ जार है, तो हरूफ जार जब चेंज हो रहा है तो उसने पूरे सेंटेंस का मानी ही चेंज कर दिया। क्लियर है सबको ये बात? जी। फिर अगर हमने दोबारा से मोनस देखे ना, मोनस का मसला तो काफी हद तक हल हो रहा है ना, हम इतनी प्रैक्टिस करें। हुआ दरबा से क्या मोनस बनेगी? ये बनेगी या नहीं? या जरा हुआ, हुआ ये क्या है? यंसुरु। ये क्या है? यंसुरु। यंसुरु, हुआ यंसुरु, क्या मोनस हिया बनेगी? तंसुरु, हिया तंसुरु, या तंसुरु। तो इनकी टीपियां क्या थी? हुआ यंसुरु, हिया तंसुरु, ठीक है। और एक अंता तंसुरु भी होता है, याद है सबको ये बात कि वो तंसुरु का लफ्ज जो है वो टेबल में 2 मर्तबा आता है, एक दफा नंबर 3 पे आता है और एक दफा नंबर 7 पे आता है। अब कौन सा इसमें से डिफरेंट लग रहा है आपको? इसका ऑड वन आउट निकालें, कौन सा डिफरेंट लग रहा है आपको? पालतुम, ये जमा है। बिल्कुल ठीक है। इसमें से कौन सा डिफरेंट लग रहा है? तिलका, तिलका वाहिद, सॉरी मुअन्नस। तिलका मोनस है। अच्छा एक और बात बताएं, तिलका को आपने किस हवाले से अलग किया? सेकंड ऑप्शन थी मुजक्कर और नहीं, सेकंड थी वाहिद जमा, तो आप इसको वाहिद जमा के हवाले से अलग करें या मुजक्कर मुअन्नस के हवाले से अलग करें? ये जमा है। मुजक्कर मुअन्नस। कैसे? पहला जो सबसे पहले आपने फॉर्मूला अप्लाई करना था ना, इसम फेल हर्फ का, वो तो इस पे नहीं लगेगा ना, बिकॉज सारे इसमें ना। तो सेकंड नंबर पे आपने देखना है कि वाहिद जमा के एतबार से देखें, वाहिद और ये जमा। तीनों जमा है ना, तिलका क्या है? हाउलाई, उलाइका और हुम जमा है सारे। तो तिलका क्या है? तिलका जो है वाहिद है, वाहिद तिलका मोनस वाहिद है, ठीक है। तो आपको अपना जवाब जो है वो सेकंड नंबर पे मिल गया। अब ये वो केस आ गया कि अगर आप नंबर 3 पे जाएंगे तो फिर आप कहेंगे कि अच्छा हम देखेंगे कि अच्छा आपको लग रहा है कि तिलका मोनस है भी, लेकिन नंबर 3 पे तो यूं तो फिर हाउलाई भी मोनस के लिए इस्तेमाल हुआ था, उलाई का भी मोनस के लिए इस्तेमाल हुआ था, लिहाजा आपने इसका जो जवाब है वो अपने नंबर 2 वाले जो क्राइटेरिया है उससे ढूंढना है, उसमें आपको ये वाहिद जवाब मिलेगा। तो क्लियर है ना बात सबको? आप हाँ जी। इसको अपने मोनस के हवाले से अभी अलग नहीं किया आपने, इसको जाके सिर्फ वाहिद जमा के हवाले से अलग किया, ठीक है ना। मोनस के हवाले से तो आपको पता है ना, हाँ उलाई भी मोनस में यूज होता है, उलाई का भी यूज होता है, ये मोनस की जमा के लिए आता है, ये मोनस की वाहिद के लिए आता है। उस सूरत में तो तीसरा वाला अगर आप अप्लाई करेंगे ना फार्मूला, उस सूरत में तो फिर आपको ये जवाब इस तरह से मिलेगा, क्योंकि ये मुज़क्कर है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, जिस सीक्वेंस पे आपको आपका जवाब मिल गया वही आपका जवाब होगा, इसलिए तीसरे सीक्वेंस पे, तीसरे वाले नंबर पे आपने जाना ही नहीं है अगर आपको दूसरे पे जवाब मिल गया। क्लियर है ये बात सबको? हाँ जी। उसके बाद इसमें से देख लें क्या डिफरेंट हो सकता है। सारे ही इसमें नजर आ रहे हैं। नंबर 1 ठीक है, नंबर 1 वाला तो हमारा नहीं अप्लाई हो सकता। नंबर 2 पे हमने देखना था वाहिद जमा, तो इसमें से कोई आपको वाहिद जमा के हवाले से कुछ फर्क लग रहा है? ये जमा है, ये भी जमा है, ये भी जमा है, इसका मतलब ये वाहिद है, ये वाहिद, ये आपको जवाब मिल गया। अब तो उम्मीद है कि इसके बारे में अगर लोगों को अभी भी कुछ कंफ्यूजन थी तो काफी हद तक ये अब आप लोगों की प्रैक्टिस हो रही है, अब तो काफी क्लियर हो गया होगा। दोबारा से इसको देखिए, इसमें से अगर अलग करना हो, ये तो सारे ही फेल हैं, ठीक है ना, तमाम फेल हैं, इसका मतलब इस तरह अलग नहीं हो सकता। फिर आप जाएंगे वाहिद जमा पे, आप देखेंगे ये तो सारे ही वाहिद हैं, सारे वाहिद हैं ना, सारे फेल हैं, सारे वाहिद हैं। अब हमारे पास एक ऑप्शन आखिरी रहेगी मुज़क्कर फ़ाअलत आएगा, इसमें फ़ाअलत जो है हमारा मुअन्नस है, ठीक है ना, तो हमारा मसला हल हो गया। एक लफ्ज आया था आयतुन, तो उसके मानी हमने पढ़े थे, क्या मानी पढ़े थे? अल्लाह की निशानी और कुरान का जुमला, ANC। कुरान के जो वर्ड्स होती है, आयत होती है, जुमला, उसको भी आयत कहते हैं और अल्लाह की निशानियों को भी कहते हैं आयात। तो इसका मतलब है कि हमारा जवाब क्या होगा? डी, ठीक है। डी। तुम सब मदद करोगे, वो सब याद करेंगे।
ठीक है। सी फिर इस्माउल कुरान, फेले अमर है जमा वाला, कि तुम सब सौफा नस्माउल कुरान, सौफा नस्माउल कुरान, ठीक है। फिर इस्मा अल अजाना, कि अजान सुन, तो वो क्या कहेगा? सौफा अस्माउल कुरान, सोफा अस्माउल अजान। अजाना। इसमें से फिर अलग करें, क्या क्या अलग हो सकते हैं? ये तो फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है, क्या अलग हो सकते हैं? ठीक है, यही होगा ना? क्या ख्याल है? ठीक है हाँ कि जी, नहीं? इस्म फाइल की जमा आ गई। हाँ जी, नहीं इसको इस्म, अभी इस वक्त इस्म ले, हमने हमारा जो क्राइटेरिया था ना, वो क्राइटेरिया था इस्म फेल हर्फ की बुनियाद पे अलग करें ना, ठीक है ना। नो मैटर वो इस्म फाइल है, वो इस्म मुजक्कर है, वो इस्म मुअन्नस है, वो कोई भी इस्म की टाइप, ठीक है। जी इवन ठीक है। वो हुआ हो सकता है, वो इस्म ज़मीर हो सकती है, इवन आइंदा हो सकता है, बात इस्म की हो रही है, एनी सॉर्ट ऑफ इस्म, ठीक है। ठीक है जी। अब्दुल्लाह का जवाब क्या होगा? सौफा अब्दुल्लाह, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। अबुदू, ओबुदू है, सौफा नाब, सोफा नाबुदुल्लाह। बिल्कुल ठीक है। मुअव्वज़तैन से क्या मुराद था? पढ़ा है आपने, याद है आपको? मुअव्वज़तैन किसको कहते थे? क्या इन तीनों सूरतों को मिला के कहते थे? सूरह फलक और सूरह सूरह नास। फलक और सूरह नास। सूरह फलक और सूरह नास। अल्लाह ताला की कितनी सिफात बयान की गई हैं और कितने शुरूर से पनाह मांगी गई है? कौन सी सूरत में पूछी है? मेरी इस पे पिक्चर है, सूरतुल फलक। हाँ जी, सूरतुल फलक बताएं जी। सूरह फलक कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। एक क्या था? एक शुरू, एक सिफ्त और तीन शुरू। एक सिर्फ तो तीन शुरू, इसमें से आपने ढूंढना है ना, इसमें से एक फलक का है और एक जो है वो नास का है। ये किसके बारे में, किस सूरह से रिलेट हो रहा है? नास। सूरह और नास, ये इस तरह भी सवाल आपसे पूछ सकते थे ना, ये भी तो पूछ सकते थे ये ना सूरह आपसे, अगर फलक। आपने, हाँ जी, अगर हमने सूरह नास के बारे में ये सवाल पूछा होता तो फिर ये जवाब आना था, और सूरह फलक। तो सिंपली आपने सूरह को पढ़ लेना है, तर्जुमा आपके साथ साथ चलेगा और आपको उसके जवाब मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ से अगर आपने देखने हैं यजअलू का आपने बनाना है तो क्या होगा? क्या वो बनाना बनाता है, वो बनाता और है, यजअलूना, वो सब बनाते हैं। ये तो बहुत अजालू, आसान है। हाँ, मैं ये तो मैं बनाता बनाती हूँ। हूँ, अजालू मैं बनाता हूँ, हम बनाते हैं। नजालू ये सबको आता है। वो खोलेगा और मैं बनाऊंगा। अब बताए ना, वो खोलेगा, वो खोलेगा। यफ्ताहु, यफ्ताहु व अजालू। बिल्कुल ठीक है, और अजालू, हाँ ए। ठीक है जी। दरबना व मा दरब, दरबना अलग अलग से है, वा अलग से है, और मा दरबा, ठीक है ना, इस तरह से। अब आप इसको ढूंढें। हमने मारा तो हमने मारा इसमें भी आ और गया, उसने नहीं मारा। उसने मारा। अच्छा हमने मारा हमने इसमें भी मारा आ गया, इसमें भी आ गया, लेकिन अगली हमने बात मारा है, और उसने मारा, हमने उसने मारा नहीं। और उसने नहीं मारा। डी अच्छा आएगा। नहीं मारा, हाँ, उसने नहीं मारा। इग़फिरली में अल्फाज के कितने टुकड़े हैं? इग़फिरली, ये ठीक है, या फिर इग़फिर? दो हैं, दो। दो, ये एक लग रहा फिर है, कौन सा जवाब सही बी, लग रहा है? दो, बी, नहीं नहीं नहीं, दोबारा सोचें। ऑप्शन डी। ये ठीक लग रहा है, क्या ख्याल है? ठीक है। ये जो ली आपको नजर आ रहा है, ऑप्शन डी। बेसिकली इसके क्यों दो टुकड़े बनाए? याद है आपको? लहू, लहुम, लका, ली। जब हम ली करते थे तो हम क्या करते थे, हम बेसिकली उसके साथ साथ हम जोड़े थे ना, जमाए जोड़े थे, तो वो हमने इसको यूं जोड़ा था तो ये ली बना था ना। हमने इसको जोड़ना शुरू किया था ना, हु के साथ, फिर हुम के साथ, फिर का के साथ, ठीक है। ये वो चीज है, तो ये जवाब है इसका, ठीक है। अब इसका दूसरा सवाल बनता है कि इसके टुकड़े कीजिए, सल्ली रब्बी का, तो क्या टुकड़े होंगे इसके? 4 सल्ली ली रब्बी का। बिल्कुल चार, सल्ली ली ऑप्शन सी। रब्बी और का। ठीक है जी। रब्बुना और रब्बाना के मानी हमने कई दफा इसको डिस्कस हमारा किया। रब और ए हमारे रब। शाबाश, माशाल्लाह, आसान थी। और उसके बाद अहाज़ा लहुम, इसका जवाब क्या होगा? क्या ये उन सबके नाम लिए है? नाम हाजा हाजा लहुम। लहुम। नाम हाजा लहुम। फिर
आइन लाम मीम के मादे से फेल माजी के आपने देखने हैं। इल्म, अब देखें ये तो इल्म वाला है, ये भी इल्म वाला है, ये भी इल्म वाला है, ये भी इल्म वाला है, सारे इल्म वाले हैं, लेकिन आपने दुरुस्त वाला ढूंढना है। आप सबने जाना, माजी, अलिम तुम, अलिम अलिम हमने जाना, हमने जाना, अलिमना, अलिमना, और उस औरत ने जाना, अलिमता, अलिमतु, अलिमत होगा ना, अलिमत अलिमत, हाँ, अलिमत। उस औरत ने जाना। फिर दोबारा से बताएं इसमें से कौन सा डिफरेंट लग रहा है आपको? इनकी मैं ज्यादा प्रैक्टिस करवा रही हूँ ना, कौन सा डिफरेंट लग रहा है? इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या ख्याल ऊपर है? वाले तीनों जमा है और नफ्ताहु वाहिद है, नहीं? नहीं, बाकी जब ये आप इसमें सेकंड है कैटेगरी बनना कि चाहे ना, पहली कैटेगरी से स्टार्ट किया पहले, हाँ, बाकी पहले सारे पहले क्राइटेरिया को अप्लाई किया करें, उसको रूल आउट किया करें। अगर आपको पहले में से जवाब मिल रहा है तो आपने दूसरे और तीसरे को देखना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है। पहला क्राइटेरिया था इस्म फेल हर्फ की बुनियाद पर अलग करें, ये भी आपको फेल मिल गया, ये आपको इस्म मिल गया, ये आपको फेल मिल गया, ये फेल मिल गया, तो आपको आपका जवाब यहीं पे मिल गया। आपने नंबर 1 पे जवाब ढूंढ लिया, अब 2 पे भी नहीं जाना, 3 पे भी नहीं जाना। ठीक है, क्लियर हुई है बात सबको? हाँ जी। ऐसे अब आप इसमें से दोबारा से वही कोशिश करें, ये क्या है, ये क्या है, क्या ये इसमें इसम ये जो है ना है, तो ये क्या है? तीनों इसमें है और ये जो है फाइल मुजारे। फेल है, अच्छा, जब ये फेल है। अच्छा देखिए, अभी किसी ने कहा मुदारे, एक तो ये मुदारे नहीं है वैसे, अभी आप देख रही थी, कोशिश कर रही थी, आपको थोड़ी देर में समझ आ जाए कि ये मुदारे नहीं, ये मादी है, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ बीइंग माजी और मुदारे और अमर और नहीं और व्हाटएवर, फेल होगा। जब हम ये वाला सवाल करेंगे ना, ऑड वन आउट वाला, इसमें हमने फेल के बारे में तफसीलात नहीं सोचनी। जैसे मैंने इसम के बारे में बात की थी ना कि इसम कैन बी मस्तर, इसम कैन बी इसम फाइल, इसम मफूल, या कोई भी सिंपल इसम हो सकता है ना। इसम होगा, फेल होगा, ब्रॉडर सेंस में लेना है। ठीक है, इसमें ये नहीं सोचना कि अच्छा 2 मुदारे हैं, 1 माजी है, अच्छा कौन सा ऑड वन आउट होगा, ऐसे नहीं। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से देखिए, इसमें से कौन सा अलग कर सकते हैं आप? ये भी मुझे हाँ। हर्फ लग रहा है, ये भी हर्फ लग रहा है, ये भी हर्फ लग रहा है, तो ये आपका क्या है? हाँ, कई दफा इसम। हमने ये सवाल किया, ठीक है ना। अगर माँ की जगह मैंने आपको इंदा दिया हो तो तब भी यही जवाब होगा। ठीक है, ये जवाब किसी का भी इंशाल्लाह गलत नहीं होगा। अच्छा, इसमें से कौन सा हर्फ है? अब सवाल को समझें, सवाल मैंने इस वक्त ये किया है कि इन चारों में से हर्फ कौन सा है? क्या ये हर्फ है? इन्ना, क्या इन्ना, ये हर्फ है? क्या ये हर्फ है? इन्ना, ये हर्फ है। अद्दीन का मानी क्या है? जिंदगी गुजारने का तरीका होता है या बदला होता है? क्योंकि हमारी बदला, बच्चों A में and भी B पढ़ा दोनों। था। ए ए एंड और बी, ए और बी। तो इबादत और मदद हासिल करने के लिए कौन सी आयत हमारी रहनुमाई करती है? सूरतुल फातिहा के हवाले से। देखिए ना, अब इसमें इबादत का भी जिक्र आ गया और मदद का भी जिक्र आ गया, तो क्या जवाब होगा? इय्याका नअबुदु व इय्याका इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और साथ ही इसका खुलासा बता दीजिए, सूरतुल फातिहा का खुलासा क्या था? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो मेरे ख्याल है कि हमारी जो है वो 100 स्लाइड्स पूरी हो गई हैं। ठीक अच्छा, है, ये एक दफा मुझे बताइएगा कि रब्बुना और रब्बाना फिर से बताइएगा मतलब। रब्बुना आपका जो है वो रब्बुहु के टेबल से आ गया। ठीक है ना, रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बु का हमारा रब्बी, रब्बुहुम रब्बुना, हमारा रब, सिंपली। ठीक है ना। जी। तो जो रब्बाना है उसके बारे में हम देख रहे थे। अच्छा, तो रब्बाना में क्या होता था कि इससे पहले हम कहते हैं एक या महसूस होता है। ठीक है ना, या यहाँ पे ना ऐसे, उसने इसको जबर दी थी, वरना तो ये जबर ना आती ना, उसने इसको जबर दी थी। ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है। मत खोल दो। तो इसको ठीक है। महसूस कर देते हैं, यानी इसको ड्रॉप कर देते हैं, और ये फिर ए रब्बाना हमारे का मतलब होता है कि ए हमारे रब। बेसिकली ए जो है ना वो इस या का तर्जुमा था। ठीक है ना, लेकिन ये उसको हज़फ कर दिया, लेकिन इसको हज़फ किया, लेकिन हम तर्जुमे में रखेंगे ए हमारे रब,
हमारे ठीक है। रब। और इसको तो हम दुआओं से याद रख सकते हैं ना, रब्बाना आतिना फिद दुनिया, हमारी इतनी सारी रब्बाना से कोई 40 दुआएं हैं, पता नहीं कितनी दुआएं मशहूर है ना रब्बाना से, तो रब्बाना को आप उस हवाले से याद रख सकते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया। और कोई क्वेश्चन रह गया है, कोई कंफ्यूजन रह गई है, कोई अपने बात पूछनी है तो उसके हवाले से देखिए। सबसे सजल ने भी एक क्वेश्चन करना है, सिस्टर सजल आप पहले पूछ लें क्वेश्चन। जी सिस्टर सजल ने क्वेश्चन पूछना है या वैसे हैंड रेज हुआ था? तो इसमें ये था कि आज की जो मैम, रिवीजन मुझे ये क्लास थी इसमें जी, वो ईच एंड एवरी sister। एस्पेक्ट जो ना कवर हो गया। जी सिस्टर पूछे। जी मैम, मक्का तुम बताते हैं ये इसम मुजक्कर है या मुअन्नस? जी मक्का जो है ना वो मुजक्कर है और इसम है। सिंपली इसम तो इसलिए है कि ये जगह का नाम है, ठीक है ना। इसको मक्का तू जी। कहेंगे, तुन नहीं कहेंगे, ये तुन नहीं होता, ये एक ठीक। रूल है, एक्सेप्शनल रूल है, ठीक है ना। तो मक्का तू जो है जी। ना इसम है क्योंकि ये जगह का नाम है और ये मुजक्कर है। ये मुजक्कर क्यों है? आप कहेंगे कि इसके साथ गोलता है, तो ये तो एक्सेप्शंस आती रहेंगे ना। अल्लामा भी तो होता है ना, अल्लामा के आगे भी तो गोलता है ना। फिर हुजैफा वगैरह जो नाम होते हैं, ठीक है ना, ये भी तो गोलता है ना। तलहा, उसामा, इनके आगे भी तो गोलता है ना। तो एक्सेप्शंस होंगी, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं इस तरह से। मदीना भी तो एक है ना जिसके आगे आपको गोलता नजर आ रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो गोलता जो है उसको फिर ये देखना होता है कि मतलब हम जनरली अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है कि हमने किसी मोनस की एक तरह से सिफत है कि जिस तरह वो काफिरा है, फासिका है, या उसका कोई प्रोफेशन है, जिस तरह वो उस्ताजा है या वो आलिमा है, मौलिमा है या कुछ है, या फिर वो मुसलमान होना भी उसकी सिफत कह सकते हैं, सौले होना भी, तो सौलेहा है, मोमिना है। तो आप उस हवाले से अभी अपने आपका स्कोप अभी इतना ही है मोनस के हवाले से, ठीक है। बाकी शायद जी। कोई ग्रुप में क्वेश्चन आ रहा था ना मलाइका वाला, तो उसको मैंने भी थोड़ा एक्सप्लेन किया था और सिस्टर्स भी करेंगी। तो हाँ मलाइका, जी। मलाइका जो है वो मलक यानी फरिश्ता जो होता है ना, मलक, उसकी ये जमा है ना, मलक की जमा है, ठीक है। मलक, मलकुल मौत को तो जानते ही होंगे ना, मलकुल मौत को सब लोग जानते हैं ना। तो ये जो है मलक की जमा है मलाइका। अब कोई कंफ्यूज ना हो जाए कि मलाइका के आगे बोलता है तो ये कहीं मोहम्मद तो नहीं है। बेसिकली वाहिद को देखना होता है। अगर वाहिद हमारा मुजक्कर है तो अब जमा बनाते बनाते उसकी जेंडर नहीं चेंज हो जाएगी, ये भी मुजक्कर ही रहेगा। अच्छा, आई वंडर के लोग मलाइका बच्चियों का नाम रखते हैं ना, तो पता नहीं क्यों रखते हैं लेकिन रखते हैं ना मलाइका नाम। मलाइका कौन सा? फरिश्ते, ये नहीं किया। तो ये क्वेश्चन एड्रेस हो गया। और कोई बात? अब देखें, बात मैं ये कह रही थी कि एक हमने आपको सैंपल क्विज दिया है ना, जो फाइनल जो आपका क्विज होना है मंडे को इंशाल्लाह, उसका आपको सैंपल दिया है। और आज के जिस सेशन में जो क्वेश्चंस आए हैं 100% आपका क्विज इन्हीं में से है। यानी मतलब कोई थोड़ी थोड़ी सी कोई चेंज आ जाए या कुछ है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको सारे हमने रिवाइज कराए। इसम फाइल का, इसम मफऊल का, मस्तर दे दें तो उससे फेले माजी पे कैसे पहुंचेंगे। मतलब मैं आपको एक मस्तर दे देती हूँ, मैं आपको कहती हूँ मतलब कुछ भी अमलुन दे देती हूँ, तो मैं कहती हूँ इसका फेले माजी बताएं तो आप अमिला बताएंगे। इल्मुन दे देती हूँ तो आप उसको कहें माजी बताएं तो आप उसका अलिमा बताएंगे। बाब आपको याद होना चाहिए। टोटल 11 तो अबवाब आपने पढ़े हैं, तो वो आपने अबवाब जो है ना वो भूलने नहीं है। खास तौर पे 3 तो सारे जबर जबर वाले आ जाते हैं ना, दरबा, फतहा, नसरा, लेकिन एक जो है वो समिया आता है जिसमें मतलब है कि ऐसे आता है, ठीक है ना, उसकी ये साउंड होती है। तो इन 11 में से 3 जो है वो समिया के पैटर्न के थे, 4 जो है वो नसरा के पैटर्न के थे, एक दरबा का था और बाकी 3 जो है वो फतहा के थे। तो आप देख लें, यही था ना। अच्छा, अभी एक और सिस्टर का हैंड रेस था, जूनी जी सिस्टर। जी जी, मैंने ये पूछना है कि ये अगर फाइनल क्विज के लिए हम सिर्फ पास एक पेपर या पेन अगर रख ले, श्योर रख सकते हैं? हाँ रख ठीक है, सकते कोई हैं। हाँ नहीं, एक रफ नोटबुक रख सकते हैं आप, अच्छा पीस ऑफ पेपर रख लें, साथ पेन रख लें। डिवाइस में से बाज़ औक़ात लोगों ने थोड़ा सा देखना होता है रुक के, उनको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कोई बात लग रही है, जिस तरह मैंने आपको बताया खास तौर पे हरूफ मादा को कंफर्म करना है। आप कहेंगे अच्छा ये अमिला का फेल आया तो इसको मैंने ऐन लाम मीम लाम को अपने पास निकाल के रखना है ना। इस तरह कहीं आपको कंफ्यूजन आ रही है अलिमा के फेल से, तो आप इल्म को अपने पास निकाल के रख लें कि अच्छा इसका मतलब तो जी जानना था, इसका मतलब तो अमल करना था। अच्छा इसमें कौन सा अप्लाई हो रहा है, हाँ ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है मैं इसको लेती हूँ, वो ना। तो इस तरह से आप रफ वर्किंग थोड़ी सी कर सकते हैं।
इसमें कोई हर्ज अच्छा नहीं है, अच्छा बस आपको बुक क्लोज रखनी होगी ना, क्लोज बुक होता है ये फाइनल। हाँ जी ओके ओके जज़ाक तो अब तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ किसी ने कहा है कि ठीक है, किसी ने कहा कि उन्होंने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए जाना है, तो वो जा रही हैं। बाकी मिस्टर रेहा ने 8, अच्छा वो कोई आंसर दे रही थी, आंसर दे रही थी, ठीक उस्तादा है। है ना, ये आपने जो टेबल्स बताई थी वो जैसे फाला के पैटर्न पे एक बार कौन कौन से वर्ड थे एक बार वो बता दीजिए ना, जैसे फाला के अपन ने जो पढ़े हैं अभी तक। अच्छा आपने पूछा है कि हमने कौन कौन से पैटर्न्स पढ़े, जो एक फाला के ऊपर हमने 3 पढ़े थे, याद है? फतहा, जाअला, फाला, 3 पढ़े थे, ठीक है। ये देखिए नंबर 1 था बाब फतहा, इसमें हमने पढ़ा था फतहा, इसमें हमने पढ़ा था जाअला और फाला, 3 हो गए आपके, ठीक है ना। नंबर 2 में आप नसरा की जल्दी से बताएं कौन कौन से पढ़े थे। एक नसरा पढ़ा था, फलक का पढ़ा था, अबदा पढ़ा था, ज़करा पढ़ा था, ठीक है, 4 हो गए। दरबा एक ही पढ़ा था, मारपीट बहुत कम की हमने किसी में, ठीक है। उसके बाद हमने समिया में हमने किया था समिया, एक तो आराम से आपको वही मिल जाता है ना, फिर ये 2 वो आपस में ये तो कभी भूल ही नहीं सकते ना, क्योंकि आमिला आलिमा मिलने जुलने का चांस था, इसके बारे में तो आज हमने इतनी बात की और ये हमें पता चला कि ये समिया के पैटर्न पे है, ठीक है ना। 4 तो 3 इसके हो गए, 3 और 1 4, और फिर 8 9 10 11, तो टोटल आपके बन गए 11 तो आपने अफ़आल पढ़े हैं, बहुत ही कम है, इंशाल्लाह ये आपको याद रहेंगे। पहले ये वाले सारे जो वो जबर वाले होते हैं, नसरा, खलका, बता, ज़करा, दरबा, फतहा, जाअला, फाला, इसमें जो है वो मिडल वाले पे जेर आ जाती है, समिया, अमिला, अलिमा। बस इसको 10 दफा बोलें अभी, समिया, अमिला, अलिमा, समिया, अमिला, अलिमा, यही इसकी की है, इसको मेमोराइज करने की ही है कि आप इसको अपने मुंह से बोलें, आप ही के कान सुने, आप इसके साथ पीपीआई करें, इंशाल्लाह आपके अपने ही जहन में ये बैठ जाएगा। तो अब ग्रुप में अगर कोई भी फर्दर कोई भी क्वेरी होगी तो आप लोग जरूर ग्रुप में पूछिएगा। और अभी 2-3 दिन हैं। अच्छा, अब वो जो सैम्पल क्विज की बात हो रही थी, सैम्पल क्विज जिन लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया अच्छा है, जिन्होंने अभी नहीं किया वो आज रात तक बेशक करें, कल सुबह में करें, परसों करें, मतलब संडे, इवन मंडे के दिन भी करें सुबह के टाइम पे, बट जितना जल्दी करें उतना ही अच्छा है, ताकि उनकी प्रैक्टिस हो जाए। कोई उसमें से सवाल पैदा होता है जहन में, कोई कंफ्यूजन आती है, वो भी डिस्कस कर लें, ठीक है। आज के रिव्यू सेशन को जिन लोगों से मिस हो गया वो ज़ाहिर है उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह अवेल करेंगे। जिन्होंने आज अटेंड किए हैं वो भी अगर चाहेंगे अपने फायदे के लिए इसको दोबारा से देखें, सुने, उनको बहुत फायदा होगा। पीडीएफ इसका शेयर हो जाएगा, इन क्वेश्चंस को दोबारा से देखिए। और अब तो मुझे लगता है कोई वजह नहीं रही कि आप लोगों का क्विज अच्छा ना हो। फाइनल क्विज इंशाल्लाह आपका 100% ही होना चाहिए। सिर्फ ये कि आपने जल्दी नहीं करनी, जैसे कि वो आपको पहले भी बताया जाता है ग्रुप में, जाहिद भाई भी एक दिन लिख रहे थे कि जल्दी करने के एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, ठीक है ना। इसलिए ये बिल्कुल कोशिश ना करें कि आप 10 मिनट्स में 15 मिनट्स में अपना क्विज भेज दें कि डन डन डन। उसमें क्या होता है थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, इसलिए कि बहुत सुकून से करें, टेक योर टाइम, मतलब आधा घंटा लगाएं। टाइम 90 मिनट्स होंगे, वो टाइम टाइम तो इतना ज्यादा है, टाइम तो 90 मिनट्स है, जो कि वैसे बहुत ही, हमने पता नहीं क्यों 90 मिनट्स दिया हुआ है, वैसे शायद 60 मिनट्स करते हैं ऐसे, क्या ख्याल है। मैंने जो ना 5-6 घंटों के रिवीजन सेशंस किए हैं, 7 आवर्स के हैं। तो अब ये क्विज का टाइम कम, वो असल में ये पहले से सेट पैटर्न चला आ रहा है टाइम का ना, इसलिए सही टाइम देते हैं कि बीच में सो जाएं थोड़ी देर, वो जैसे ना वो कछुआ और खरगोश की कहानी, बस क्विज किया, सो गए थोड़ा सा, फिर उठ के दोबारा कर लिए, इतना टाइम होगा कि फिर भी खत्म नहीं होगा ना। और आपका नहीं, मगरिब की नमाज भी होती है दरमियान में। अच्छा, क्या 6:30 पे भेज दें क्विज आपको, या 7 पे भेज दें, जैसे आप कहें, हम थोड़ा लेट भी भेज सकते हैं। 7 o'clock भेज दें आपको, 7 से 8:30 आपके पास बहुत अच्छा टाइम होगा। कराची वालों के लिए तो ये बेस्ट है, क्योंकि बीच में हमारी नमाज होती है। मेरा ख्याल है ये ठीक है। इसके बाद आप लोग अपना डिनर और अपना इशा कर सकते हैं। जो पाकिस्तान के लोग हैं मुझे लगता है और इंडिया के लोग, उनको तो ये टाइम सूट कर जाएगा 7 से 8।
तो ये टाइम रख लेते हैं। मंडे को इंशाल्लाह आपको क्विज दे देंगे, आपने ज़रूर करना है, अच्छा क्विज करना है सब कुछ। और उसके बाद नेक्स्ट मंडे को इंशाल्लाह मिलेंगे दोबारा से आप लोगों के रिजल्ट के साथ, और आप लोगों को इस प्रोग्राम में हम कुछ और बहुत सी अच्छी बातें बताएंगे, और बहुत इंस्पिरेशनल कुछ चीज़ें हैं, वो प्रोग्राम आप लोग मिस ना कीजिएगा। और उमर भाई भी कहीं ना कहीं से हैंड हाँ रेज जी, नजर हाँ जी, सॉरी, बहुत शुक्रिया आपके रिवीजन का। हालांकि मैंने पूरा सेशन तो नहीं लिया, लेकिन मैं इसको देखूंगा रिवीजन में। इन टर्म्स ऑफ एग्जाम, ये जो अभी टाइम है, हम जो लोग इंग्लैंड में हैं, हमें सूट करता है कि लंच टाइम के पास हो। तो मुझे सूट करता है अगर ये पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 6:30 PM स्टार्ट हो जाए। लेकिन अगर ज़्यादा लोग 7 o'clock करेंगे तो फिर मुझे उसके अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। शुक्रिया जी। ठीक है। वैसे थोड़ा सा इंडिविजुअली अगर इनको भेज दें, एक ही रिक्वेस्ट है, ये इनको भेज सकते हैं ना इंडिविजुअली? नहीं, मेरे ख्याल में हम 6:30 ही कर लेते हैं, और उसमें या 6:45 कर लेते हैं। उसमें ये होगा कि एक्सटेंड कर लेंगे थोड़ा सा, अगर किसी को, अगर इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वो मुझे कांटेक्ट करे, तो वो मैं अकॉर्डिंगली फिर हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है। बस वही एडवाइजरी जो चल रही थी वो यही है कि बहुत जल्दी में आपने क्विज नहीं करना, अपना टाइम के साथ। और आपका देखें ये जो फाइनल क्विज है, जैसा कि आपको बार बार बताया कि जा रहा है, ये आपका 40% वेटेज रखता है। तो अगर पीछे से कुछ लोगों के मार्क्स अभी थोड़े से लूज हुए हैं, कम चल रहे थे, तो इस क्विज से बहुत वो मेकअप कर सकते हैं, काफी डिफरेंस आ जाएगा उनकी पोजीशन वगैरह में। ठीक है, तो इसमें आप इंशाल्लाह पूरी कोशिश करें, अच्छा क्विज करें। और ये सारे क्वेश्चंस PDF आपसे शेयर होगा, ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से अजबर कर लें। यही आपका क्विज है, ठीक है, यही आपका क्विज है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। तो इजाजत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम अल्फाज में आप सब लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। अल्लाह आप सबको अजर अजीम अता फरमाए। हमारे लिए दुआ कीजिए। आमीन। आपको भी अल्लाह ताला आसानी दे।